परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। இந்த நாளிலே நாம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கற்றுக்கொள்ள வந்திருக்கிறோம். यहाँ आप और हम सब लोग परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए हम आए। கற்றுக்கொள்கிறது நீங்க மட்டுமல்ல, நாங்களும் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். मैं भी आप और हम मात्र मैं भी आपको बताते हुए मैं भी सीखना चाहता हूँ। அல்லேலூயா हालेलुया। ஏன்னா ஆவியானவர் கற்றுக் கொடுக்கிறவர். क्योंकि पवित्र आत्मा एकमात्र परमेश्वर है जो आप और हम सबों को सिखा सकते हैं। ஆண்டவராக இயேசு சொன்னார், என்னிடத்தில் வாருங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் சொன்னார். यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனா இன்று கற்றுக்கொள்ள வந்திருக்கிறோம். इसलिए हम मिलकर हम आए सीखने के लिए। தேவன் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருப்பார். परमेश्वर आपके लिए हमारे लिए की बड़ा योजना ठहराया। நாம் கற்று தேறின போது जब हम सीखकर हम आगे बढ़ते हैं அந்த நேரத்தில் கர்த்தர் நம்ம எடுத்து பயன்படுத்துகிறார். तब परमेश्वर हम सबों को उपयोग को बनाएगा। ஸ்கூல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீச்சர் இருப்பாங்க, அந்த டீச்சர் கீழே அநேக ஸ்டூடெண்ட் இருப்பாங்க. जब हम स्कूल में देखते हैं एक टीचर के हाथ के नीचे बहुत सारे बच्चे विद्यार्थी रहते हैं। ஆனால் அந்த பிள்ளைகள் கற்று தேர்ந்த பிறகு அவங்களும் டீச்சராக மாறுறாங்க. जब वो बच्चे सीखते हैं और बढ़ते जाते हैं बाद में वो बच्चे बाद में टीचर बनते हैं। அல்லேலூயா. आमीन। அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த பிறகு ஸ்கூல் ஆரம்பித்த போது அப்போது பிள்ளைகளை ஒன்றாக சேர்க்கிறார்கள். क्या हमारे हिंदी समझ में आता है आप लोगों का? प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम बाद में सिखाने के बाद बच्चे बढ़ते जाते हैं उनके बच्चों में से सिलेक्शन करते हैं, नियुक्त करते हैं ताकि वे टीचर बनते हैं। இங்கே நாம் கற்றுக்கொள்ளும் போது यह हम सीखते हैं। பல இடங்களில் ஆண்டவர் திட்டம் தீட்டுகிறார். हम भिन्न भिन्न जगह पर परमेश्वर की योजना ठहराता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் கற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் ஆண்டவர் எந்த காரியத்தை செயல்படுத்த यदि முடியாது. हम नहीं सीखते हैं कि परमेश्वर कोई योजना हमारा द्वारा पूरा नहीं कर सकता। அதனால தான் முதலாவது கற்றுக்கொள்ளுங்கள். इसलिए हम सब पहले सीखना चाहिए। ஆவியானவர் சொல்றார், நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை காட்டுவேன், உன்மேல் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன். पवित्र आत्मा परमेश्वर भजन संहिता में लिखेगा मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा, जिस मार्ग में चलना होगा उसमें तुझे अगुवाई करूंगा और सम्मति दिया करूंगा। அங்க சொல்லப்பட்டு நான் உனக்கு போதித்து, वहां लिखेगा मैं तुझे सिखाऊंगा। ஃபர்ஸ்ட் போதிக்கணும், पहले सिखाना चाहिए, அதுக்கு பிறகு தேவன் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதை பார்க்க முடியும். तब परमेश्वर हमारा आकर हमको सिखाने वाला बातों को देखेगा। ஏன்னா என்ன எப்படி நடக்கணும்னு கற்றுக் கொடுக்கிறார். कैसे चलाते हैं सीखते हैं और कैसे चलाते हैं हम परमेश्वर देखते रहता है। நாம் நடப்பதிலே நாம் தவறும் போது நமக்கு ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கிறார். जब हम चलते चलते कुछ हम गलत हो जाते हैं परमेश्वर तब हमको सलाह देते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம நல்ல வழியிலே நடக்கும்போது அவர் இன்னும் நம்ம அதிகரிக்க நமக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறார். जब हम अच्छे रास्ते पर चलने टाइम पर और भी परमेश्वर हमको अच्छी वस्तु को सिखाएगा। தவறினாலும் ஆலோசனை கிடைக்கும். जब हम गलत मार्ग में चलते हैं तब हमको सलाह मिलता है। நம்ம நல்ல வழியில போகும்போது இன்னும் அது அதிகரிக்க உதவி செய்கிறார் ஆலோசனை கொடுக்கிறார். जब हम और अच्छा मार्ग में चलने टाइम और भी बढ़ोतरी मिलेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நாளில கூட நாம் CTH, BTH, MTH படிக்க வந்திருக்கிறோம். यहाँ आप और हम सब लोग CTH, BTH, MTH बातों को सीखने के लिए हम आए। CTH என்றால் அதாவது படிப்பு அறிவு இல்லாதவர்களுக்கு CTH. CTH मतलब जो बात बाइबल पढ़ नहीं सकता पर अच्छा प्रार्थना करते हैं, अच्छी आराधना करने लोग भी पढ़ नहीं पाते उन लोगों के लिए CTH है। BTH அவங்க கொஞ்சமாவது படித்து இருக்கணும். BTH जो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं उन लोग सीखने के लिए அவங்க எழுத முடிந்தால் यदि वो लिखने के लायक है तो அவங்க BTH பற்றி சொல்லி தருவாங்க. तब उनको BTH के लिए हम सिखाते हैं। MTH ஒரு BTH முடித்தா அவங்க MTH பண்ணலாம். जब BTH समाप्त होने के बाद वे MTH में सीखने के लिए तैयार। எத்தனை பேர் புரியுது நான் சொல்றது? कितने लोग समझ में आया जब हम कहते समझ गए, समझ में आया? ஓகே. हाँ बोलना चाहिए। BTH கிறிஸ்து இயேசுவை குறித்து மையமாக வைத்து கற்றுக் கொடுக்கப்படும். BTH जो हमारे बीच में BTH 2 साल का है वो मसीह यीशु का केंद्र बनाकर 2 साल तक यीशु मसीह का रहस्य को हम सिखाते हैं। அதை கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவு. जब मसीह यीशु का जानने वाला समझ के बारे में हम सिखाते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவு. मसीह यीशु के बारे में
ही हम सिखाना चाहते இயேசு என்றால் ரட்சகர், हैं। यीशु मतलब उद्धार करता, கிறிஸ்து என்றால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர். मसीह मतलब अभिषेकीय व्यक्ति, அதுதான் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவு. मसीह यीशु का जानने वाला समझ, அறிவு என்றால் நாலேஜ். समझ मतलब नॉलेज। இயேசு ரட்சகர், यीशु उद्धार करता, கிறிஸ்து அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர், मसीह अभिषेकीय व्यक्ति, அவரை அறிகிற அறிவு நாலேஜ். उसका जानना समझ वही नॉलेज कहलाते हैं। ஃபர்ஸ்ட் கிறிஸ்துவை அறியணும். पहले मसीह को पहचानना, கிறிஸ்துவை அறியாம கிறிஸ்து போல் வாழ முடியாது. मसीह का जानने बिना, पहचानने बिना उसका समान हम चल नहीं सकते। கிறிஸ்து எப்படி வாழ்ந்தாரோ அப்படியே நாம் வாழ வேண்டும். मसीह जैसे चलकर दिखाते थे वैसे हम भी चलकर दिखाना चाहिए। அந்த கிறிஸ்துவின் ஆவி, ஆத்மா, சரீரம். मसीह का, यीशु का ज्ञान, यीशु मसीह का आत्मा, शरीर, प्राण जानना, அது மூன்று பற்றி தான் பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. उसके बारे में बाइबल में मत्ती, मरकुस, लूका, योना कई जगह पर यीशु के बारे में बहुत सारे रहस्य भेद छुपा हुआ। அவருடைய ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்தில் தான் குணங்கள் உருவாகும். आत्मा, शरीर, प्राण के अंदर एक गुण को प्रकट की जाती है। அவருடைய ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் நம்மள ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது நம்ம அவருடைய குணங்களா மாறிடுறோம். जो आत्मा हमारा परमेश्वर के यीशु का गुण हमारे अंदर आने टाइम पर हमारा आत्मा, शरीर, प्राण में हम उनके समान बनने के लिए तैयार की जाती है। ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம அவருடைய கிறிஸ்துவுடைய அந்த ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் வார்த்தையாக பார்க்கிறோம். जब यहाँ यीशु मसीह का जो गुण या उनका आत्मा, शरीर, प्राण वचनों के द्वारा वचन में दिखाई पड़ती है। அதுதான் அவர். वचन ही यीशु है। அவரை அறிகிற அறிவு அந்த வார்த்தை அறியணும். जो यीशु को जानना चाहिए तो वचन में पढ़ेंगे, वचन जानेंगे तो यीशु को जानेंगे। கிறிஸ்துவுடைய முதல் குணமே அன்புதான். यीशु मसीह का पहला गुण है वो प्रेम। அன்பை நம்ம மூணா பிரிக்கலாம். प्रेम को तीन तरीके से भाग बना सकते हैं। ஒன்று அன்பு 30%, 60%, 100%. और प्रेम 30% भी है, 60% भी है, 100% भी है। இங்க உட்கார்ந்திருக்கிட்ட சிலருக்கு 30% அன்பு இருக்கும், சிலருக்கு 60 இருக்கும், சிலருக்கு 100 இருக்கும். कुछ लोगों के पास प्रेम यहाँ बैठने वाला 30% भी है, कभी 60% भी है, कभी 100% भी होगा। அது வசனத்தின்படி வளரும் போது தான் வரும். जब वचन के साथ साथ बढ़ेंगे तो बढ़ते जाएंगे। வசனத்தை நீங்க எப்ப விட்டுறீங்களோ அப்ப அந்த அன்பு குறைஞ்சினே இருக்கும். यदि वचन को जोड़ेंगे, छोड़ देंगे, वो प्रेम में घटी होती जाएगा। அதனால தான் வசனத்து மேல உனக்கு பசிதாகம் இருக்கணும். इसलिए मसीह का वचन के ऊपर अधिक भूख की प्यास चाहिए। அதிகமான வசனங்களை தேடி தியானித்து ஆராயணும். अधिक से अधिक प्रभु का वचन को ढूंढना, खोजना, ध्यान करना, இது மூன்று வேலை மிக அவசியமானது. ये तीनों बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ஃபர்ஸ்ட் வேதத்தை தேடு, पहले परमेश्वर के वचन को ढूंढो, இரண்டாவது ஆராய்ந்து பாரு, दूसरी बात खोजो, மூன்றாவது தியானித்து பாரு. तीसरी बात ध्यान करो। அப்படி எத்தனை பேர் நீங்க செய்திருக்கிறீங்க இது வரைக்கும்? अभी तक कितने लोग ऐसे ढूंढते, खोजते, ध्यान करते? पिछली बार हमने क्लास में आने जब कितने लोग अटेंड किए? कौन से पूर्व आपका नाम है? बटाला மற்ற- तारागढ़ बटा बटाला तारागढ़ तारागढ़ नहीं, तारागढ़ था तारागढ़ तो उस समय पर हम अच्छे से बैठा कर सबों को मैंने करेक्शन भी किया, आपके सिखाए। कितने लोग होमवर्क लिखे वैसे எல்லாமே किए, लिखे ஹோம்வொர்க் जो होमवर्क नहीं आए अपने? उन्होंने भी किया है हाँ जी, जो नहीं आए थे वहाँ पर उन्होंने भी किया है जो नहीं आए वो भी किए, बड़ी अच्छी बात है। हम यहाँ आने जरूरत नहीं होगा। जो आपका मैसेज था उनको कन्वे कर दिया था वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड, அல்லேலூயா. हालेलुया। சத்தியத்தை நாம் அறிய வேண்டும். சத்தியம் நம்மளை விடுதலை. हम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्रता करेगा। சத்தியத்திற்கும் வசனத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்? सत्य और वचन को क्या फर्क है, आप बता सकते हैं? सत्य और वचन क्या फर्क है? सत्य को ही ईश्वर वचन कहते हैं। सत्य को ही ईश्वर को ईश्वर कहते हैं, वचन जो ईश्वर प्रॉमिसेस करते हैं बड़े से सत्य को देव ने चल रहा है, वचन के सत्य ही वचन है और वचन ही सत्य है। அரிசிக்கும் சோறுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? बैठिए। चावल और पका हुआ चावल के क्या फर्क है?
कच्चा Sorry, चावल एक और ही- पका चावल। कच्चा चावल तो कच्चा चावल थोड़ा होगा और पका हुआ चावल ज्यादा होगा। वो वंडरफुल। चबाने में फर्क नहीं पड़ेगा, खाने में फर्क नहीं पड़ेगा, पेट में फूलने में, कच्चा चावल में खाने से फर्क जाए। அரிசி சாப்பிட்டா பலவீனம், कच्चा चावल खाने से कमजोरी हो जाएंगी, சோறு சாப்பிட்டா பலன் உண்டாகும். चावल पका हुआ चावल खाने से ताकत आएगा। அது மாதிரி வசனங்க சத்தியத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்குது. उसी प्रकार सत्य को और वचन को फर्क है। அது என்ன, அதுதான் வித்தியாசம் சொல்லுங்க. उसे आप थोड़ा बहुत फर्क बता सकते क्या? जितने बात हम बोलते आप जरूर हर बातों को लिखिए, हाँ? बोलते रहेंगे, लिखते रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। कभी कभी बहुत सारे बात में बोलते बोलते मैं खुद सीख रहा हूँ। Praise the Lord। வசனம் என்பது वचन मतलब தேவனுடைய விதையை குறிக்கிறது. परमेश्वर का वचन के बीज। அல்லேலூயா. वचन मतलब बीज। இப்ப வேதத்துல पंजाबी में क्या உங்களுக்கு बोलेंगे? पंजाबी में क्या बोल? बीज, बीज के लिए बीज, बीज, बीज। பைபிள் இருக்கிற அத்தனையுமே ஒரு விதையா இருக்கிறது. पवित्र शास्त्र में जितने वचन है वो पूरा एक बीज का बराबर है। இப்ப பிசாசு கிட்ட சத்தியம் இருக்குதா, வசனம் இருக்கா? शैतान के पास सत्य है के वचन है कि उनके पास? शैतान के पास बीज है ना, बीज पाले सत्य नहीं है बीज है, इसके पास बीज है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இப்போ கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரியுது. थोड़ा बहुत आप समझ आए। சத்தியம்னா என்ன? सत्य मतलब क्या? सत्य उस बीज की सच्चाई। नहीं, सच्चाई का சத்தியம் என்றால் அது கனியை குறிக்கிறது. सत्य मतलब उसका फल को प्रकट करेगा, जो बीज से बाहर आता है। அல்லேலூயா. அந்த இயேசு சொன்ன சத்தியத்தை அறிவில் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். इसलिए यीशु ने कहा सत्य को जानोगी, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। அப்ப இந்த வசனமாகிய விதையை जो वचन के बीज जो है, அது முதல் நீங்க தேடி கண்டுபிடிக்கணும். और वचन को ढूंढ कर हम खोजना चाहिए। இந்த வேதத்துல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 3 விதமான விதைகள் இருக்கிறது. ये पवित्र शास्त्र में 3 प्रकार का बीज है। ஒன்று பிசாசுடைய விதைகள் இருக்கிறது, एक तरफ शैतान का और तरफ बीज है, மனுஷனுடைய விதை இருக்கு, दूसरा मनुष्य की बीज है, மூன்றாவது தேவனுடைய விதை இருக்கு. तीसरा परमेश्वर का बीज है। இப்போ பாவம் அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு பைபிள்ல. पवित्र शास्त्र में पाप के बारे में लिख रखा। அது யாருடைய விதை? वो किसका बीज है? वो जोर से बोलिए। விபச்சாரம் என்ற வார்த்தை எழுதி இருக்குது, அது யாருடைய விதை? विभचार के बारे में वचन लिखा है, वो किसका बीज है? பொருளாசை என்ற வார்த்தை குறிக்கிறது, அது யாருடையது? लालच के बारे में लिख रखा, वो किसका बीज है? சடங்காச்சாரங்களை பற்றி எழுதியது, அது யாருடையது? ये परंपरा के बारे में लिख रखा, वो किसका बीज है? हाँ, मनुष्य का। மனசுக்கு. பரமேஸ்வரன் அதாவது சரீரத்தை குறித்து சொல்லும் போது எப்படி சாப்பிடணும், எப்படி உட்காரணும், அது குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கும். शरीर के बारे में बात करते हैं, कैसे खाना, कैसे उठना, कैसे चलना, शरीर के बारे में लिख रखा। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனா தேவனுடைய வார்த்தை தான் முக்கியமான ஒரு விதையா நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும். परमेश्वर का वचन एकमात्र जो बीज के रूप में हम लेना चाहिए। அதனால தான் ஒவ்வொரு அதிகாரங்களிலும் 3 பேரே வருகிறாங்க. इसलिए एक एक अध्याय पर एक अध्याय 1189 अध्याय, एक अध्याय में त्रिएक परमेश्वर पिता भी है, पुत्र भी रहेगा, पवित्र आत्मा भी है। அதே மாதிரி மனுஷனுடைய வார்த்தை, தேவனுடைய வார்த்தை, பிசாசின் வார்த்தை. उसी प्रकार वही अध्याय में मनुष्य का वचन भी रहेगा, परमेश्वर का वचन भी रहेगा, शैतान का वचन भी रहेगा। அதனால ஏசாயா 34:16 சொல்றாரு. इसलिए एशिया नबी किताब पढ़ेंगे, एशिया नबी किताब 34 अध्याय 16 वचन। एशिया नबी किताब 34 अध्याय, ईशा यस एशिया 34 वर्स 16। यहोवा की पुस्तक के ढूंढ कर पढ़ो, पढ़िए यशायाह 34:16। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी।
कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। वचन पढ़ेंगे तो एक हिंदी में पढ़ेंगे, एक पंजाबी में पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे ताकि हम हर बातों को रिकॉर्डिंग होता है, आपको मदद हमको बहुत अच्छी बात हो जाएगी। கர்த்தருடைய புஸ்தகத்திலே தேடி வாசியுங்கள், இவைகளில் ஒன்றும் குறையாது, இவைகளில் ஒன்றும் ஜோடியில்லாதிராது. அவருடைய வாய் எதை சொல்லிற்று, அவருடைய ஆவி அவைகளை சேர்க்கும். पंजाबी में पढ़ेंगे। प्रभु की पोथी ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੜੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। प्रभु ने आप ही ये आज्ञा दी है ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। आमीन। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगा, कोई भी बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। கர்த்தருடைய புஸ்தகத்திலே தேடி வாசியுங்கள். ये पहला लाइन लिखा है, यहोवा की पुस्तक ढूंढ कर पढ़ो। புஸ்தகத்திலே पुस्तक பண்மையிலே அது எழுதப்பட்டிருக்கதா, ஒருமையில் எழுதப்பட்டிருக்கா? ये बहुवचन में लिखेगा, कौन सी बात में लिखा है? पुस्तक में ढूंढ कर पढ़ो। पुस्तक அது பண்மையில் இருக்கா, ஒருமையில் இருக்கா? புஸ்தகத்திலே. हाँ, किस बात में लिखा? एक वचन में एक वचन। सिंगुलर இங்கே தமிழ் பைபிள்ல என்ன போட்டிருக்கு? புஸ்தகத்திலே பண்மையில் இருக்கு. ये पुस्तक में बहुत सारी चीज के बारे में लिखा रहता है। पुस्तक मतलब बहुत सारे, मतलब पुस्तक मीनिंग 66 புஸ்தகம். पुस्तक मतलब 66 पुस्तक, बाइबल में 66 पुस्तक। கர்த்தர் என்பது பிதாவை குறிக்கிறது. यहोवा मतलब पिता परमेश्वर को दर्शाता है। புஸ்தகம் என்பது 66 புஸ்தகத்தை குறிக்கிறது. पुस्तक मतलब 66 पुस्तक के बारे में। அதுல தேடி வாசின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. उसको ढूंढ कर पढ़ो लिख रखा। எல்லாமே வாசிக்கிறாங்க, पर सब लोग पढ़ते हैं, ஆனா தேடி வாசிக்கிறது இல்ல. पर ढूंढ कर पढ़ते नहीं। ஏன் நாம் தேடி வாசிக்கணும்? क्यों हम ढूंढ कर पढ़ना चाहिए? யாராவது சொல்ல முடியுங்களா? ஏன் தேடி வாசிக்கணும்? क्यों ढूंढ कर पढ़ना चाहिए? कोई बोल सकते? इसमें परमेश्वर के रहस्य है। தேவனுடைய ரகசியங்கள் அதில் நம்ம ஏன் தேடி வாசிக்கிறோம் என்றால், ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை மையமாய் வைத்து அந்த மைய வார்த்தை எடுக்கிறோம். क्योंकि हम इसीलिए ढूंढ कर पढ़ते हैं, हर एक वचन में मुख्य शब्द में वो यीशु को दर्शाता, हर वचन में मध्य का शब्द यीशु को दर्शाता। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப இயேசுவை நம்ம தேட வேண்டும் என்றால், यदि हम यीशु को ढूंढना चाहिए तो அந்த இடத்துல பிசாசு குறித்து பக்கத்துல வருகிறது, மனுஷன் குறித்து வருகிறது. उसका आसपास में शैतान के बारे में आएगा, मनुष्य के बारे में भी आएगा। அதனால தான் தேட சொன்னார் பிதா. इसलिए यीशु ने, पिता परमेश्वर ने कहा उसको ढूंढो। ஆனா எழுதின 66 புத்தகம் ஆவியானவர் எழுதுறாரு. इस 66 पुस्तक पूरा पवित्र आत्मा के सहायता से लिखा गया। அதே ஆவியானவர் சொல்றாரு, கர்த்தருடைய புஸ்தகத்தை தேடி வாசி. वही पवित्र शास्त्र में पवित्र आत्मा ने कहा वो ढूंढ कर पढ़ो। அப்ப யாரெல்லாம் தேடுகிறார்களோ, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन के यहोवा को ढूंढता है, அப்ப இயேசுவை கண்டறிய முடியும். तब यीशु को पहचान में आ जाएगा। இயேசு எப்படி இருக்கா? வார்த்தையாக தான் இருக்கிறார். क्योंकि यीशु वचन के रूप में ही है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு பைபிள்ல எப்படி இருக்கிறார்னா வார்த்தையா இருக்கிறார். कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र में वचन के रूप में ही है। அப்படின்னு எங்க எழுதி இருக்கிறது வார்த்தையா இருக்கிறாருன்னு? कहाँ लिखेगा यीशु वचन में है कहलाकर? 1 யோவான் 5:7 हम पहले योहन्ना 5वां अध्याय 7 वचन में लिख रखा है। पहले योहन्ना 5वां अध्याय, 1 John chapter 5 verse 7। जल्दी जल्दी उठाकर जल्दी जल्दी लिखे और पढ़ी, फटाफट पढ़, बहुत बात है। कोई भी पंजाब में पढ़ सकता आप लोग। यस, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। पहली யோहन्ना 5वां अध्याय 7वां वचन। பரலோகத்திலே சாட்சி இருக்கிறவர்கள் மூவர், பிதா, வார்த்தை, பரிசுத்தாவி என்பவர்களே இம்மூவரும் ஒன்றாய் இருக்கிறார்கள். उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे गलत प्रभु। गलत है, 7 का गलत। पहले यूहन्ना 1 John chapter 5, 1 John, you are reading only John, I am telling 1 John। जय पाने वाला कौन है? हाँ, केवल वह जिसका यह विश्वास गलत है।
और जो गवाही देता है वह Yes. आत्मा है, Yes. क्योंकि आत्मा सत्य है। आमेन, राइट। அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இயேசு வார்த்தையா இருக்கிறாரு. यदि हम यहाँ देखें तो परमेश्वर वचन आत्मा सॉरी वचन के रूप में रहता। இந்த யோவான் இந்த வார்த்தையா இருக்கிற இயேசு எப்ப எழுதுறாரு? ये यूहन्ना लिखने वाला खत लिखने वाला यूहन्ना कब लिखता है इसके बारे में? कब लिखता है ऐसे वचन को? எந்த நேரத்தில் எழுதுகிறார்? किस समय पर लिखता है? இயேசு உயிரோடு இருந்த நேரத்தில் எழுதினாரா? இயேசு மரித்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு எழுதினாரா? यीशु मसीह जिंदा रहने तब लिखता क्या यूहन्ना ये पुस्तक को? यीशु मसीह मृत्यु के बाद लिखता है। அப்போ யோவான் பரலோகத்தை பார்க்கிறார். ये यूहन्ना स्वर्ग राज्य को देखता है। அங்க பிதா இருக்கிறாரு, அங்க குமாரன் வார்த்தை இருக்கிறது, அது பக்கத்துல பரிசுத்த ஆவி. वो स्वर्ग में अपने आंखों में देखता है, वो स्वर्ग में पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह वचन के रूप में, पवित्र आत्मा भी वहाँ रहता है। அல்லேலூயா. आमेन। ஏன்னா யோவான் 1:1 அவர் வார்த்தையாக இறங்கி கீழே வந்தார். कि यूहन्ना सुसमाचार पहला दिया पहला वचन लिख रखा, यीशु मसीह वचन के द्वारा हमारे बीच में उतर आया। 1:14 நீங்கள் வாசிக்கும் போது यूहन्ना पहला दिन 14 वचन में लिख रखते हैं, அந்த வார்த்தை மாம்சமாய் விட்டது. वचन देवदारी हुआ। மறுபடியும் அந்த வார்த்தை அவர் வார்த்தையாகவே மேல वो போய் वचन देवदारी वो वचन वापस वचन के रूप में वापस स्वर्ग में उठा ली। மறுபடியும் அந்த வார்த்தை நமக்கு எழுதி வச்சிட்டார். कई बार वो वही वचन हमारे लिख कर रखती है। இப்ப அந்த வார்த்தை தான் ஆண்டவர் தேட சொன்னார். वही वचन को परमेश्वर ने यीशु मसीह को हम सबों को ढूंढने के बाद வார்த்தை வேறு வசனம் வேறு. शब्द अलग है और वचन अलग है। வசனத்துக்கு வார்த்தைக்கு என்ன வித்தியாசம்? वचन और शब्द के क्या फर्क है? शब्द मनुष्य के हैं, वचन परमेश्वर के हैं। ஓகே. शब्द कोई भी हो सकता है, वचन तो परमेश्वर का वचन है। வார்த்தை 2 அல்லது 3 எழுத்துக்கள் இணையிற இடத்துல ஒரு வார்த்தை உருவாகும். शब्द देता है परमेश्वर के मुख के निकले हुए वचन। जो वचन है दो வார்த்தை. वचन वही बोलता है। வார்த்தை வசனம். जो वचन शब्द जो कहलाते हैं, एक ये 2 3 जो अक्षर मिला के है बोलते हैं। ஒரு வார்த்தை 2 அல்லது 3 எழுத்துக்கள் இணையும் போது ஒரு मिला வார்த்தை के உருவாகும். शब्द 2 அல்லது 3 வார்த்தை இணையிற இடத்துல ஒரு வசனம் உருவாகும். 2 या 3 शब्द मिला के वचन बन जाता है। வாங்க வாங்க. वर्ड्स यस यू அது आर எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது? कितने को समझ में आए? आमीन। அதனால இயேசு வார்த்தையா இருக்கிறாரு, வார்த்தை எழுதுறாரு. इसलिए यीशु मसीह वचन वचन बार-बार वचन वचन कहलाकर लिखते रहता है। அதான் வார்த்தை वचन वर्ड वर्ड एंड वर्ड लिखते रहता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। வார்த்தை தேட வேண்டியது அவசியம். इसलिए वचन को ढूंढने का அது வார்த்தை இயேசு எப்படி இருக்கிறாரு? ஒரு மையமாய் இருக்கிறதே ஒவ்வொரு அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம். एक एक वचन में यीशु मसीह को वो एक अध्याय पर वचन के रूप में यीशु मसीह है कहलाकर लिख रखा है। இப்போ நீ சங்கீதம் 3ஆம் அதிகாரத்தை நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம். एक उदाहरण के लिए भजन संहिता 3 अध्याय निकाले, जो पिछले बार क्लास में आपको निकाल कर आपको सिखाया गया। भजन संहिता साम 3 अध्याय 1 मिनट। भजन संहिता 3 அதுல ரட்சிப்பு என்ற 3 இடத்துல வந்திருக்கு. या इस अध्याय पर भजन संहिता 3 अध्याय पर उद्धार पिछली बार हमने सिखाया, ये पिछले बार पुस्तक उठाकर देख लीजिए। 3 बार वहाँ उद्धार के रूप में लिखा। 2ஆம் வசனத்திலே நீங்கள் பார்க்கும்போது दूसरा वचन में उद्धार के बारे में लिख सकते हैं। தேவனிடத்தில் அவனுக்கு ரட்சிப்பு இல்லை என்று என் ஆத்மா குறித்து சொல்லுகிறவர்கள் அநேகமா இருக்கிறார்கள். तीसरा अध्याय में तीसरा वचन में दूसरा वचन में बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर का ओर से नहीं हो सकता। நெக்ஸ்ட் வந்து 7ஆம் வசனத்துல मिला है कि आपको उद्धार? கர்த்தாவே எழுந்தருளும், என் தேவனே என்னை ரட்சியும். 7 वचन में लिखा उठ यहोवा मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले। 8ஆம் வசனம் சொல்றது ரட்சிப்பு கர்த்தருடையது. हिंदी में बचा लिख रखा
आपको दूसरा वचन में बच्चा, 7 वचन में बच्चा लिखे, पर तीसरे वचन में 8 वचन में लिखे बच्चा, उद्धार यहोवा ही और से होता है। இப்போ ரட்சிப்பு என்ற வார்த்தை 3 பேருக்கு அது உரியதா இருக்கிறது. दूसरा वचन में 7 वचन में और 8 वचन में बचाव, बचाव, उद्धार, ये 3 प्रकार के लोगों को जरूरत है। ஒன்று பிதாவிய ரட்சகராக இருக்கிறார். पिता परमेश्वर को उद्धार के रूप में रहते हैं। பிதாவாகிய தேவன் பழைய ஏற்பாட்டில் ரட்சகராகவே வெளியிருந்தார். पुराना नियम के अनुसार पिता परमेश्वर उद्धार करते रूप में ही, छुड़ाने के रूप में ही रहता है। மத்தேயு, மார்க்கு, லூக்கா, யோவான் அவர் ரட்சகராகவே இருக்கிறார் இயேசு. और उसी प्रकार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में ही प्रकट किए गए। புதிய ஏற்பாட்டில் அப்போஸ்தலர் வெளிப்படுத்திருக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ரட்சகராக இருக்கிறார். प्रेरितों के काम से प्रकाशित वाक्य तक, प्रेरितों के काम से प्रकाशित वाक्य तक पवित्र आत्मा उद्धारकर्ता के रूप में ही प्रकट की जाती है। 3 பேருக்குமே அந்த வல்லமை இருக்கிறது. वो पिता परमेश्वर को वही उद्धार का सामर्थ्य, यीशु मसीह को उद्धार करने का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा को भी उद्धार करने का सामर्थ्य। இவங்க 3 பேரும் ஒன்றாவே இருக்கிறார். तीनों एक ही है। ஒரு லைட் பார்க்குறோம், ஒரு லைட் விளக்கு எரியும் போது அதில் ரெட் கலர், ப்ளூ கலர் அண்ட் येलो கலரை பார்க்குறோம். जब हम गैस सिगरेट जलाते हैं आपको नीला कलर दिखता है, सही बात है ना? एकदम ज्यादा रहने से, थोड़ा कम करवाने से लाल और पीला अच्छी से अपने आंखों में देख, एक ही दीप जैसे सिगरेट जलाने से 3 कलर अपने आंखों में देख सकते। அது ப்ளூ கலர் பிதாவை குறிக்கிறது. जो नीला कलर वो पिता परमेश्वर दर्शाता है। ரெட் இயேசுவை குறிக்கிறது. रेड कलर जो लाल कलर पुत्र यीशु मसीह को दर्शाता है। येलो கலர் பரிசுத்த ஆவியை குறிக்கிறது. जो पीला कलर पवित्र आत्मा को दर्शाता ஒரே है। எண்ணெயில தான் எரிகிறது. पर एक ही गैस में वो जलाते हैं, ஆனா அதுல இருந்து 3 கலர் வர மாதிரி परंतु उसमें से 3 रंग कलर आता है। பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவி ஒரே தேவனுக்குள் அடங்கி இருக்கிறார். उसी प्रकार त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र एक ही जगह पर, एक ही में बना रहते हैं। அதே போல பூமியில மனுஷர்கள் ஒரு மனுஷனாக வெளிப்படும் போது அவனுக்குள் ஆவி ஆத்மா சரி வெளிப்படுகிறது. जिस प्रकार मनुष्य की जिंदगी में मनुष्य की जो मनुष्य की है उसका अंदर आत्मा, शरीर, प्राण। குடும்பம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட அப்பா, அம்மா, பிள்ளைகளா இருக்கிறார். जैसे परिवार को निकाले माता, पिता, बच्चे। ஒரு ஸ்கூல் எடுத்துக்கொண்டால் அந்த இடத்துல பிரின்சிபல், டீச்சர், ஸ்டூடெண்ட். यदि हम स्कूल में जाए, प्रिंसिपल भी रहता, टीचर भी रहता, बच्चे भी रहते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। இதெல்லாம் திருத்துவமா இருக்கிறது. ये सब जो कहलाते हैं वो त्रिएकता को दर्शाता है। அது தெரிஞ்சாதான் நம்ம பைபிளை தெரியும். जो त्रिएकता को पहचान लिया पवित्र शास्त्र में आसान समझ सकते हैं। நீங்க வேதத்துல ஒன் வேல போனீங்கன்னா நித்திய ஜீவன் அறிவது ரொம்ப கடினமா இருக்கும். सिर्फ यीशु 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 के बारे में बोलेंगे वो अनंत जीवन प्राप्त करने बड़ा कठिन हो जाएगा। ஏன்னா பிதா ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, ஆவியானவர் இருக்கிறார். पिता परमेश्वर भी है, पवित्र आत्मा भी है, वो तीनों एक साथ ले चलना। ஆனா 3 பேருமே வார்த்தையா இருக்கிறார். पर तीनों वचन के रूप में प्रकट की जाती है। 3 பேரும் ரட்சகரா இருக்கிறார். तीनों उद्धारकर्ता के रूप में। அல்லேலூயா. हालेलुया। இப்ப ரட்சகர் ரட்சகர் ரட்சகர்னு 3 இடத்துல பார்த்தோம். जब हम भजन संहिता 3 अध्याय में पढ़ते हैं, हम 2 वचन में, 7 वचन में, 8 वचन में उद्धार, छुड़ाया, उद्धार लिख रखा। இந்த வார்த்தையை நாம் தேடி கண்டுபிடிச்சோம். ये तीनों हम ढूंढ कर निकाले हमने। இது சாதாரண கிடைக்காது. ये हम बिना ढूंढते हुए नहीं मिलेगा। அப்ப இந்த ஒரு வார்த்தை எடுத்து தேடிதை எடுத்து நம்ம இருதயத்தில் வைக்கிறோம். ये ढूंढ कर बार ढूंढ कर आप उठाकर हमारे हृदय में रखते हैं। அந்த ஒரு வார்த்தை ரட்சிப்பு என்ற வார்த்தை கொண்டு போய் இருதயத்தில் வைக்கிறோம். एक शब्द जो वचन जो शब्द है उद्धार को लेकर हमारे हृदय में रखते हैं। எப்படி ரைஸை கொண்டு போய் உலையில போடுறோம், जैसे चावल उठाकर गंजी में पकाने की तैयार करते हैं, கீழே நம்ம எரி வைக்கிறோம், அக்னி கூட उसको हम सिगड़ी में गंजी के नीचे जलाते हैं। இருதயத்துல வார்த்தை போடுறதுக்கு நம்ம தியானம் பண்ண வேண்டியது அவசியம். जो हमारे हृदय में वचन जाने के बाद हम ध्यान करना चाहिए, बार बार எப்படி அரிசி சாப்பாடா மாறுகிறதோ, जैसे चावल खाना बन जाता है, அவருடைய வார்த்தை ஜீவனா மாறுகிறது. वैसे ही वचन हमारा अंदर जीवन बन जाता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த வார்த்தை ரத்தமா மாறுகிறது. वही वचन खून बन जाता है, அந்த வார்த்தை ஆவியா மாறுகிறது. वही वचन आत्मा बन जाता है। எத்தனை பேருக்கு தெரியுது சொல்றது புரியுதா? वचन जीवन बन जाता, वचन खून बन जाता, वचन आत्मा बन जाता।
அந்த வார்த்தை कितने लोग समझ में आए? அந்த வார்த்தை ரட்சிப்புன்ற வார்த்தை நம்ம இருதயத்தில் போன பிறகு நாம் தியானிக்கிறோம். जो वचन हमारे हृदय के अंदर जाके जो उद्धार का वचन लेके उसको हम बार बार ध्यान करने से, தியானம் என்றால் சிந்தனை செய், तो हमारा ध्यान मतलब हमारे चिंताओं में एकत्रित करना चाहिए, நினைவு கூறு, हम सोचना चाहिए, யோசித்து பாரு. विचार करना चाहिए. அப்போ வசனம் உணர்வடைகிறது. हम वचन को हम उस उगाते मतलब जगाते हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்போ வார்த்தை உடைகிறது. जो वचन तोड़ते हैं, அந்த வாசனம் உடையும் போது जो वचन को तोड़ते हैं, அதுல ஒரு சொட்டு ரத்தம் வெளி வருகிறது. जब हम तोड़ते हैं उसके अंदर से, वचन के अंदर से लहू खून आ जाता है. அந்த ரத்தம் நம்முடைய இருதயத்தை போய் கலக்கிறது. हमारा वो लहू हमारे शरीर में जोड़ते हैं, அந்த ரத்தத்துல போய் கலக்கிறது. वो लहू से लहू मिला देते हैं. அப்ப ரத்தத்துக்குள்ள சுபாவம்லாம் அழிய ஆரம்பிக்கும். तो हमारा पुराना स्वभाव, वो नया खून आने से पुराना स्वभाव को पूरा नाश हो जाता है. எத்தனை பேர் நம்ம சபைக்கு வருகிறோம், जितने लोग कलीसी में आते, 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு, 10 साल हो गया, ஆனா சுபாவம் மாற மாட்டேங்குது. पर स्वभाव नहीं परिवर्तित नहीं होते हैं. அதே போராமை, அதே களவு, அதே கசப்பு, அதே வெறுப்பு, அதே சண்டை எல்லாமே இருக்கிறது. वही गुस्सा, वही विरोध, वही वाद विवाद, वही लालच, वही झूठ बोलना वैसे ही रहते 10 साल से. அதனால பக்கத்துல இடத்துல பாருங்க, நம்மள பாக்குறாங்க. क्यों? इसीलिए आसपास लोग आपको देखते रहते हैं, ஆனா இயேசு கிட்ட வர மாட்டேன்றாங்க. पर मसीह के पास नहीं आते. ஏன்னா நம்ம கிட்ட இயேசுன்னு சொல்றோம், நம்ம இயேசு ஏற்றுன்னு சொல்றோம், ஆனா இயேசு போல வாழ முடியல. पर हम तो यीशु का चारण करते हैं, यीशु के गीत गाते हैं, भेज देते हैं, गवाही बताते, पर उनके समान हम जीते नहीं ना. நம்ம போங்கன்னா நம்ம கிட்ட எதுவும் நடக்க மாட்டேங்குது. पर हम हमारे पास यदि उनके पास जानकर गवाही बताने से काम नहीं हो रहा. ஏன்னா நம்முடைய சுபாவங்கள் மாறல. क्यों? हमारा स्वभाव परिवर्तित नहीं हो रहा. ஏன்னா அதனால தான் மற்றவங்களோட போய் நம்ம பேச முடியும். इसलिए हम औरों के पास जाके बात नहीं कर सकते. நம்ம கிறிஸ்து போல மாறிட்டா जब यदि हम मसीह के समान परिवर्तित हो जाएंगे, அவங்க தானா நம்ம கிட்ட வர ஆரம்பிச்சு. वे खुद हमारे पास आ जाएंगे. आमीन. உங்ககிட்ட वंदा விடுதலை கிடைக்கும், तब इनके पास जाने से उन लोग छुटकारा ले लेते हैं, அற்புதம் நடக்கும், वो अद्भुत काम जरूर होगा, வயிற்று வலி போயிடும், उनका पेट दर्द ठीक हो जाएगा, அவங்களுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படும், उनका आवश्यकता पूरा किया जाएगा, அவங்களுடைய வீடு கட்டப்படும், उनका मकान बन जाएगा, அவங்களுடைய ஸ்கூல்ல பிள்ளைகள் நல்லா படித்து उनके முன்னேறுவாங்க, बच्चे स्कूल में अच्छे पढ़ेंगे, அவங்க எல்லாம் வேலைகளை उनका பெற்றுக்கொள்வாங்க. अच्छे काम में लगे रहेंगे. இதெல்லாம் நிறைவேறிட்டு. ऐसे सारे काम पूरा हो जाते हैं. ஏன்னா தகப்பன் தன் பிள்ளைகள் என்னை போல இருக்கணும்னு ஆசை. क्योंकि पिता अपने हर घर का, हमारा शरीर के पिता अपने बच्चों लोग किसके समान बनना चाहते हैं? मेरे बच्चे लोग मेरे समान बने. माता जी सोचते हैं मेरे बेटी लोग मेरे समान पकाएं, बोले, चले, पढ़ाई करें. वैसे हमारे स्वर्गीय पिता भी अपने बच्चों होने के कारण उनके समान बनना चाहते हैं. आमीन. அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்ப அவரை போல நம்ம இருக்கிறது அவர் பிரியம். परमेश्वर पिता चाहता है हम उनका संतान होने के कारण वे चाहते हैं हम उनके समान बने. அவர் அர்ப்பணம் செய்தல, நம்ம அர்ப்பணம் செய்து காட்டணும். वो प्रेज़ द लॉर्ड. वो अद्भुत काम नहीं करते हैं, परंतु हम उनके नाम लेकर अद्भुत काम कर दिखाना चाहिए. அதுதான் விரும்புகிறார். वही चाहते हैं. நீங்க அற்புதம் செய்தா 10 பேர் உங்ககிட்ட வருவாங்க. यदि आप अद्भुत काम करें तो लोग आपको 10-15 लोग 20 लोग आपके पास आ जाते हैं. நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு நீங்க அவங்களுக்கு சொன்னா அவங்க கிட்ட வருவாங்க. वंडरफुल. कल का दिन के लिए क्या होने वाला है आप उनके पास बता दें, अगले दिन 2 लोग 3 लोग आपके पास आ जाएंगे. அல்லேலூயா. हालेलुया. அவங்களுடைய கஷ்டத்தை எடுத்து நீங்க பேசுறீங்கன்னா அவங்க கிட்ட வருவாங்க. वो आपको उनका कष्ट और तकलीफ दुख के बारे में उनके पास बिना वचन पढ़ के प्रार्थना कर दो, उनके पास बता दो, वो आपके पास आ जाएंगे. நேற்று நாங்க ட்ரெயின்ல வரும்போது कल हम ट्रेन में आते थे, ஒரு ஆர்மியில ஒருத்தர் உட்கார்ந்திருந்தாரு. एक आर्मी फौजी वाला व्यक्ति बैठा था. நாங்க பைபிள் படிச்சு சந்தோஷமா இருந்தோம். हम वचन पढ़कर हम खुशी के साथ बैठे थे. காலை 11 மணில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தோம். सुबह से हम शाम तक ट्रेन में आते रहते. हम अच्छी प्रार्थना वचन ஜலந்தர் पढ़ते. ரயில்வே ஸ்டேஷன் வருவதுக்கு முன்னாடி, जलंधर रेलवे स्टेशन आने के बाद ஏன்னா அவர் ஜலந்தர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இறங்க वो போறாரு. जलंधर स्टेशन में उतरने वाला था. அவர் என்கிட்ட நின்னு, मेरे पास आके खड़ा हो गया. நாங்களும் உங்களது பாக்குறோம், हम भी सुबह से देख रहे थे, இவ்வளவு சிரிச்சிட்டு சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களே, आप इतना खुशी के साथ आप हंसी खुशी होते रहते. அதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டாரு. उसने कहा उसकी क्या कारण है, आप सुबह से बड़ा खुशी से बैठे, क्या कारण है? இயேசுடைய வார்த்தை எங்க இருதயத்துல இருந்து வேலை செய்கிறது. आमीन. यीशु मसीह का वचन हमारे हृदय के अंदर रखते हैं, वो कार्य करते रहते हैं.
அப்படியே சொன்ன பிறகு அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு. वो ऐसा बोलने से बड़े आनंदित हो गया। உடனே நாங்க அவருக்கு இயேசு பற்றி சொன்னோம். तुरंत हमने यीशु मसीह के बारे में बताया। அவர் உடனே அவருடைய நம்பர் என்கிட்ட, நான் என் நம்பர் அவர்கிட்ட கொடுத்தோம். वो तुरंत उसने हमारा नंबर मांगा, हमने उनका नंबर दे दिया, उसका नंबर हमने ले लिया। வீட்டுல இருந்து கார்ல வந்தோம் சென்னையில. चेन्नई से मेरा घर से स्टेशन तक आने के लिए हम कार में आए थे। அது ஒரு முஸ்லீம் ஒருத்தர் டிரைவர் உட்காந்துருந்தார். वो कार में चलाने वाला मुस्लिम ड्राइवर था। அவர் என்கிட்ட கேட்டுனே வந்தார். वो हमसे कुछ प्रश्न पूछताछ करते थे, ஆனா அவர் முஸ்லீம் எனக்கு தெரியாது. पर मुझे नहीं मालूम था वो मुसलमान है। ஆனா அவர் கேட்ட கேள்விக்கு எல்லாத்துக்கும் பதில் கொடுத்தோம். मैंने प्रश्न को सही उत्तर मैंने देते गया। இயேசு எதுக்கு வந்தாரு, அவர் ஏன் மரித்தாரு, ஏன் அவர் உயிரோடு எழுந்தாரு, அவர் தான் தெய்வம் என்று எப்படியெல்லாம் வந்து திருத்துவமா கிளியரா பேசணும். वो यीशु मसीह कैसे आया, कैसी सेवकाई किया, कैसे क्यों मार गया, हम स्पष्ट रूप से उनके पास बता दिया। அவர் கேட்டார், அவர் ஒரு மனுஷன் தானே, அவர் ஏன் நீங்க ஏற்றுக்கிறீங்களா கேட்டாரு. वो उसने कहा एक साधारण मनुष्य ही था ना, पर वो क्या काम कर क्या जरूरत है, उसने सही प्रश्न का हमने उत्तर दिया। அதெல்லாம் நாங்க கொடுக்க 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 जो सही प्रश्न को सही उत्तर देते गया, அதை கேட்டவர் उसने जो प्रश्न पूछताछ किया, சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் வரும்போது जब हमारा स्टेशन के पास आ गया, உடனே அவர் ஏன் நம்பர் கேட்கிறாரு. वो तुरंत उसने मेरा नंबर मांग लिया। உங்க நம்பர் எனக்கு கொடுங்க, आपका नंबर आपको दीजिए, நான் அடிக்கடி உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னாரு. मैं जरूर आपसे मैं बात करूंगा। पहला कर नंबर लिया। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய பேச்சு, நம்முடைய சொல்லு, நம்முடைய வார்த்தை, நம்முடைய கிரியைகள் எல்லாம் கிறிஸ்து போல இருந்தாதான் நம்மளோட அவங்க இணையறாங்க. जो हमारा काम, हमारा बोल, हमारा विचार, हमारा सोच उनके समान होना चाहिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப இந்த வார்த்தை இருதயத்துக்கு போகுதா? वो वचन हमारे हृदय में जा रहे कि जो हम पढ़ते हैं सिर्फ पढ़ने से नहीं, हमारे हृदय में रखना चाहिए। समझ में आ रहा? அல்லேலூயா. वचन पढ़ना मात्र नहीं, you must keep in your heart। आपका वचन हमारे हृदय में रखना चाहिए। आमेन। அங்கே 13:19 சொல்லுகிறது. மத்தேயு 13:19. मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय 19. मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय 19 वचन में लिखा है, पढ़ेंगे 13:19। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसको दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे पर बोया गया था। पढ़ेंगे, நீங்க படிக்கலாம். बता भी पढ़ेंगे। 13:19। ਹਾਂ पढ़ी। ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਬੀਜ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। आमेन। அந்த வசனத்தை திருடி விடுகிறான் பிசாசு. जब वचन को दुष्ट आकर उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है, चोरी की जाती है। உணராத போது जो समझ में नहीं पाते, अच्छे से लिखे जो वचन पढ़कर समझ में नहीं तो शैतान आकर उसको वचन को चोरी कर देगा। சண்டே மெசேஜ் கேட்கிறோம், इतवार को वचन सुनते हैं, மண்டே கேட்டா தெரியல. सोमवार को पूछे पास्टर जी ने कौन सा वचन दिया, पता नहीं। அதுக்கு என்ன காரணம்? அந்த வசனத்து மேல நமக்கு ஒரு உணர்வு இல்லை. वो वचन जो सुनकर इतवार को सोमवार को पूछताछ कर पता नहीं, क्योंकि वो वचन को हम समझ में नहीं पाते। அதனால தான் வருடங்கள் கடக்க 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 इसलिए साल बीतते जाते हैं, சுபாவங்கள் மாறல. इसलिए हमारे सोच, हमारे विचार, हमारा स्वभाव परिवर्तित नहीं होता। நம்மளை பார்த்து ஜனங்கள் நம்ம கிட்ட வரதில்லை. इसलिए लोग हमको देखते हैं पर हमारे पास नहीं आते। அதுக்கு ஒரே காரணம் इसलिए एक ही कारण है, நம்முடைய சுபாவங்கள் மாறாத காரணம். हमारे स्वभाव को परिवर्तित नहीं होते। வசனம் தான் ஆவின் பட்டயம். वचन दोधारी तलवार तो है, அது வந்து ஆபரேஷன் தியேட்டருக்குள்ள இருக்க வேண்டும். वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर रहना चाहिए। அது மாதிரி வசனம் வந்து நம்ம இருதயத்துல இருந்தா எல்லா பாவத்தையும் கட் பண்ணி வெளியே கொண்டு வந்துடும். वो अगर वही वचन हमारे हृदय के अंदर है, सारे पाप, चोर, विरोध, लड़ाई,
मारपीट गुस्सा काट कर बाहर फेंक देते हैं। அல்லேலூயா. அந்த வார்த்தை உள்ள போகாத இருக்கிறதுக்கு பிசாசு மிக கவனமா இருப்பான். वो वचन और हृदय के अंदर न जाने के लिए शैतान बड़ी नाना प्रकार की चिंता सोच गुस्से को लेकर हमारे अंदर वचन नहीं जानता। இருதயம் வரைக்கும் தான் வசனம் உள்ள இருக்கு. हमारे हृदय के अंदर ही जाना चाहिए प्रभु का वचन। அந்த வசனம் மெல்ட் ஆயிடுச்சுன்னா, यदि वचन मेल्ट हो गए तो, அது உணர்வடைஞ்சிடுச்சுன்னா, अगर समझ में आ गए तो அது ஆத்மாவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும். वो हमारा आत्मा में परिवर्तित हो जाए। அது பிசாசால எடுக்கவே वो முடியாது. शैतान उसको चोरी नहीं कर सकेगा। आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதனால தான் ஒரு வார்த்தை உள்ள போய் சரியே அது போய் ரத்தத்துல கலந்து, அது ஆவியில கலந்து, அது ஆத்மால கலக்க வேண்டும். उसी प्रकार वो वचन हमारे जीवन में, आत्मा में, खून में मिलने चाहिए। நம்முடைய ரத்தத்துல கலக்கலனா ரத்தத்துல சுபாவம் மாறாது. जो खून में मिलावट नहीं करेंगे वो वचन, वो खून में जितने स्वभाव, बहुत सारे स्वभाव खून के अंदर पाई जाती है, वो मिटा नहीं सकता। நம்முடைய ஆவியில இந்த வசனம் உள்ள கலக்கலனா, जो आत्मा में वो वचन मिलावट नहीं करेंगे அங்க இருக்கிற நம்முடைய ஆவிக்குரிய காரியம் மாற்றங்கள் வராது. वो आत्मा में परमेश्वर का वचन को परिवर्तित नहीं ले आ सकता। நம்முடைய ஆவியில அப்படியே தான் நடக்கிறது. हमारे आत्मा में वैसे चलते रहते हैं। இது மூன்றிலே இந்த வார்த்தை கலக்க வேண்டியது அவசியம். इसी प्रकार परमेश्वर का वचन को तीनों में मिलाना चाहिए। அதனால தான் வேத பாடம்னு ஒன்று வைத்திருக்கிறோம். इसलिए परमेश्वर का अध्ययन, परमेश्वर के वचन को ध्यान के बारे में रखें। வேதத்தை தேட வேண்டும். परमेश्वर के वचन को पहले ढूंढना चाहिए। அந்த தேடினதை இதயத்தில் வைத்து நாம் தியானிக்க வேண்டும். जो कुछ आप अपना अकेला बैठकर जो ढूंढते हो उसको हृदय में रखना। पड़ोसी ने ढूंढा उठा कर रखना नहीं, खुद अपने आप से ढूंढ कर उसको अपने हृदय में रखो कहलाते हैं। ஹல்லேலூயா. मेरा वचन शब्द तक जाते हैं कोई बात नहीं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இது முக்கியம். ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। இதுதான் பேஸ்மெண்ட். यही नेव। இது உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க செய்யலனா, ये बात नेव हमारे जीवन में अगर नहीं काई तो ढूंढना, खोजना, ध्यान करना अगर नहीं करें, நம்மிடத்துல ஆண்டவர் எதையும் கொடுக்கவே மாட்டார். हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। ஒரு ஆத்மா கூட ஆதாயப்படுத்தவே முடியாது. एक आत्मा भी हम ढूंढ कर पकड़ कर नहीं ला सकता, ஏன்னா நம்முடைய சுபாவம் அவங்களை அடிச்சிடும். क्योंकि हमारा स्वभाव उनको मार डालेगा। ஏன்னா நம்முடைய சுபாவம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும். हमारा स्वभाव उसको मालूम है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம சுபாவம் கோபம் இருந்தா இவனை எவ்வளவு கோபப்படுறான்னு यदि हमारे स्वभाव में बहुत गुस्सा है तो देखो आपको गुस्सा करता है, அதை அவங்க பார்ப்பாங்க. वो हमको देखेगा, அதுக்கு பிறகு நம்ம கிட்ட வரைய மாட்டாங்க. उसके बाद हमारे पास आएंगे नहीं। ஆனா இயேசு எப்படிப்பட்டவர்? यीशु मसीह कैसे? தாழ்மை உள்ளவர், बड़े नम्र है, சாந்தம் உள்ளவர், बड़ी दीनता, அன்பு உள்ளவர், प्रेमी அரவணைக்கிறவர், और मतलब ग्रहण करता था, உதவி செய்கிறவர், और मदद करने वाले, அற்புதம் செய்கிறவர், यीशु मसीह अद्भुत करने वाले, அடையாளம் செய்கிறவர், आश्चर्यकरण करने वाले, விடுதலை தருகிறவர். छुटकारा देने वाले। அவரால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. और मसीह यीशु के हाथ में कोई भी काम असंभव नहीं रहेगा। ஆனா நம்ம இயேசுவை ஏற்றுக்கணும். पर यीशु मसीह ग्रहण किए गए, ஆனா நம்மளால என்ன நடக்குது? पर हमारे हाथ में क्या हो सकता है? अभी तक बताइए, நம்மள என்ன நடக்குது? हमारे हाथ में अभी तक क्या हो सकता है? सिर्फ प्रार्थना करते, गीत गाते, ताली बजाते, जोर से हालेलुया बोलते हैं, क्या हमारे जीवन में कुछ अद्भुत काम हो रहा? बोलिए नहीं। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்படணும்னா परमेश्वर का राज्य अगर बनाना चाहिए तो, பஞ்சாபை விடுதலை ஆக்கிறதுக்கு यदि पंजाब को लोगों के बीच में छुटकारा करना चाहिए तो நீங்க எல்லாம் ஆயத்தமான போதும். आप हर वक्त उसको तैयारी करना चाहिए। நீங்க வசனத்துல வளருங்க. आप वचन में बढ़ना चाहिए। எனக்கு எல்லா வசனம் தெரியும் சொல்லலாம். ये बोल से एकदम सब वचन मुझे मालूम है, ஆனா வசனம் ரத்தத்துல கலந்துருக்குதா? पर वचन खून में मिला है क्या? ஆனா உங்களுடைய ஆத்மால கலந்துருக்கா? आपका आत्मा में मिला है உங்களுடைய क्या? ஆவியில கலந்துருக்கா? आत्मा में मिला है क्या? அதுதான் விடுதலை. वही छुटकारा देगा। அதுக்கு தான் நம்ம வேதத்தை தேடுறோம். इसलिए वचन को ढूंढने के लिए हम सिखाना, அதுதான் யோசிக்கணும். यही सोचना चाहिए। அது உள்ள போய் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். वो वचन हमारे अंदर जाके काम करवाना चाहिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க எதை எடுத்து உள்ள அனுப்புறீங்களோ அதுதான் வேலை செய்யும். जो वचन अपना अंदर लेके जाएंगे वही काम करेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। சத்தியன்றது உள்ள அனுப்புனா परमेश्वर के सत्य को हम अंदर लेंगे, வெறும் கனியே உருவாகும். सिर्फ फल लेके जाएंगे। எத்தனை பேர் புரியுது? कितने लोग समझ में आया?
आमेन। அப்ப சத்தியம் வந்து நீங்க தானா வராது. हम सत्य नहीं तो फल नहीं आ सकता। ஏன்னா விதை போடணும், बीज डालने का। आमेन। அந்த விதை முளைத்து எழும்பணும், परमेश्वर का वचन बीज डालना, वो उगना चाहिए, அது நாள் காத்திருக்கணும். उसके लिए इंतजार बाट जोते रहना चाहिए। சீசர்கள் 3 வருஷம் வசந்த கேட்டாங்க. शिष्य लोग 12 लोग यीशु के पास 3 वर्ष तक के यीशु के चरणों पर बैठे थे, सुनते थे। ஆனா எல்லாமே பின்மாற்றம் அடைஞ்சாங்க. सब लोग पीछे मुड़ के देखे। மறுபடியும் இயேசு மரித்து உயிர்த்தெழுந்து வந்தார். जब यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। பிறகு 40 நாள் கூட இருந்தார் இயேசு. वो उनके साथ 40 दिन तक उनके साथ रहा। அதுக்கு பிறகு பாருங்க, उसके बाद देख लीजिए, ஆவியானவர் அவர் மேல இறங்கினாரு. जब पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन में उन सबों के ऊपर उतर आया, எல்லாருக்கும் கிறிஸ்து சுபாவம் வந்துச்சு. वे सबों का मसीह के स्वभाव बदल गया। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்கிறவர். पवित्र आत्मा हमका मददगार है। ஆவியானவர் இல்லாம எதையும் செய்யவே முடியாது. पवित्र आत्मा बिना हम कुछ भी नहीं कर सकता। தேடுவதற்கும் ஆவியானவர் தேவை, ढूंढने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए, தியானிப்பதற்கும் ஆவியானவர் தேவை, ध्यान करने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए, ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கு ஆவியானவர் தேவை. हम ध्यान खोजने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। ஆவியானவர் தானே விடுதலை பண்ண முடியாது. पवित्र आत्मा अकेला हमको छुड़ा नहीं सकता। ஆனா கிறிஸ்துவை வச்சுதான் அவர் விடுதலை தருகிறார். यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा को यीशु मसीह के द्वारा, वचन के द्वारा ही हमको छुटकारा दे सकता है। அல்லேலூயா. அதனால தான் ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. इसलिए पवित्र आत्मा हमको दी जाती है। அது எப்படி கிடைக்கிறது என்றால், अभी हम कैसे पा सकते हैं? அப்போஸ்தலர் 10:44 வாசிக்கும் एक போது, वचन पढ़ेंगे, प्रेरित the book of Acts chapter 10 verse 44। அப்போஸ்தலர் 10:44 10वां अध्याय 44 वचन। प्रेरित का 10वां अध्याय 44 वचन 44। पतरस ने ये बातें कह रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। आमीन। நல்ல சத்தமா வாசிங்க. देखिए सब जोर से पढ़ेंगे। मैंने पहले बताया, बच्चा भी पढ़ो या पतरस इन्हीं पढ़ो, ने- जोर से पढ़िए। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। पंजाबी में पढ़ेंगे। ਪਤਰਸ ਅਜੇ ਬੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰ ਆਇਆ। இந்த வார்த்தைகளை பேதுரு பேசிக் கொண்டிருக்கையில் வசனத்தை கேட்டவர்கள் யாவர் மேல் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார். पतरस ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। எந்த வார்த்தையை குறித்து பேசுகிறார்? कौन सा वचन के बारे में? கிறிஸ்து இயேசு மரித்து உயிர்த்தெழுந்தார். लिख रखा वचन, पतरस वचन प्रचार कर रहा था। कौन सा वचन? यीशु मसीह का बारे में प्रचार कर रहा था। அந்த வார்த்தை தான் அவர்களுக்கு ஆவியானவர் இறங்கி வருகிறார். वही वचन पवित्र आत्मा के द्वारा उन सबों के ऊपर उतर आया। நீங்க வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே ஆவியானவர் உங்க மேல இறங்கிடுவார். वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा उतर आएगा। आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। உங்கள் மேல் ஆவியானவர் இறங்கி வரணும்னா நீங்க ஆவியானவர் வசனத்தை கவனிக்கணும். यदि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेलना चाहे तो परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। அல்லேலூயா. இந்த வார்த்தைக்கு நீங்க நேரத்தை கொடுக்கணும். ये वचन को समय देना चाहिए। இவ்வளவு நேரம் நீங்கள் இவ்வளவு நாட்கள் படித்தது வேற, இனிமேல் படிக்கிறது வேற. इसका पहले वचन बीच बीच में आश्रय के लिए, चंगाई के लिए पढ़ते थे। इसका बाद जो वचन सीखने के बाद जो वचन पढ़ेंगे बिल्कुल अलग ही होता है। கனியா மாற வேண்டியது நம்முடைய கடமை. हमारा जीवन जो बीज है वो फल बनना चाहिए। அதுதான் ஆண்டவருடைய விருப்பம். वही है प्रभु का योजना, பிதாவின் சித்தம் அதுதான் குறிக்கிறது. वही हमारे पिता परमेश्वर का योजना। அந்த பிதாவின் சித்தம் நம்ம கனி கொடுக்கிறதா மாற்றுவதுதான். हमारे पिता परमेश्वर की इच्छा है कि हम वो बीज फलवंत होना चाहिए। உங்களுக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை. அன்பு மட்டும் உங்களுக்கு உருவாயிடுச்சுன்னா இது எல்லாம் உருவாயிடும். हमको और कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ प्रेम एक सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर होना चाहिए। அந்த அன்பு உருவாயிடுச்சுன்னா ஆத்மா தானே உடையந்துரும். जब हम हमारे अंदर प्योर 100% प्योर प्रेम है, आत्मा लोग ढूंढ कर हमारे पास, உங்க இடத்தை தேடி வருவாங்க. वो ढूंढ कर आपके पास आएंगे। ஏனென்றால் நீங்க ஒரு லைட்டா இருக்கிறீங்க. क्योंकि आपके पास उजियाला है, நீங்க ஒளியாக வெளிச்சமாக இருக்கிறீங்க. आप वो आपके पास ज्योति है, प्रकाश है। ஏன்னா அந்த அன்பு தான் கனியா மாறுகிறது. वो प्रेम वो फल होता है। இரண்டாவது நாம இந்த வேதத்தை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். तो दूसरी बात वो वचन को क्या करना चाहिए? पवित्र शास्त्र को खोजना चाहिए.
எதுக்கு நம்ம தேடு ஆராயிரோம்? ढूंढना अलग है, खोजना अलग है। யாராவது बता சொல்லுங்க, देंगे யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். once again। ஏன் வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும்? क्यों वचन को खोजना चाहिए? बता सकते कोई? उसकी डेप्थ तक जाने के लिए इसके जो रेवलेशन है उसमें से निकालेंगे। और வேதத்தை ஏன் ஆராய வேண்டும்? क्यों वचन को खोजना चाहिए? பின்னாடி कोई है? किस बात? சரி. खोजे के तो इसका इस्तेमाल करेंगे। வேதத்தை ஏன் ஆராயறனா சங்கீதம் 139 1. खोजेंगे तो पाएंगे। சங்கீதம் 139 1. एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 अध्याय पहला वचन। Psalm 139 verse 1। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। एक ही बार Yes, yes। हे प्रभु तू मैनू परखिया ते जानिया है। परख्याति जानिया है। 139 1. हे प्रभु हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा हुआ? जांच कर जान लिया है। जान मतलब क्या है? जान लिया। परखे अलग है, जान लिया अलग है। हाँ। क्या जान मतलब? लिया। तमिल में लिखा हुआ கர்த்தாவே நீர் என்னை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறீர். मुझे जांच कर जान लिया है। जान लिया क्या मतलब है? जांचना अलग है, जानना अलग है। पहचान लगे, जानना क्या बात है? जानना पहचान। बोली जानना कैसे जानेंगे? सिर्फ नाम से पहचानेंगे, जानेंगे? ईश्वर के नाम सत्य है, सत्य से ही हम पहचान। ஆராய்கிறோம், அறிவு வருகிறது. जब हम जांचते हैं, खोजते हैं, और समझ आ जाता है। அதுக்கு பேர் தான் வந்து நாலேஜ். वो है समझ। அல்லேலூயா. हालेलुया। வேதத்தை எப்பலாம் நீங்கள் ஆராயீர்களோ जब हम परमेश्वर को खोजेंगे, அப்பலாம் அறிவு வளர்ந்துனே तब இருக்கும். समझ धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। அறிவு இல்லை என்றால் என் ஜனங்கள் சங்காரமாகிறார்கள். यदि जहाँ समझ नहीं आता, जहाँ लोगों को दर्शन नहीं मिलता, नीति वचन में लिखा था, वो लोग तितर बितर नाश हो जाते हैं। जहाँ समझ नहीं, जहाँ दर्शन नहीं, लोग तितर बितर हो जाते हैं, नाश। வேதத்தை ஆராயும் போது जब परमेश्वर का वचन को हम खोजेंगे, அறிவு வளர்ந்துனே இருக்கும். समझ बढ़ते जाएंगे। அறிவு, समझ, பூரண அறிவு, पूर्णता समझ, பகுத்தறிவு. संपूर्ण समझ। அறிவு समझ ஆத்மாக்குள்ள போகிறது. हमारा आत्मा के अंदर जाने का। பூரண அறிவு சிருஷ்டிப்பு சாயம் உண்டாகும். पूर्ण समझ हमारे सृष्टिकर्ता के रूप में बना जाता। பகுத்தறிவு மறுரூப சாயம் கிடைக்கிறது. संपूर्ण समझ हम परमेश्वर का आगमन में उसको रूपांतर बनने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतर बनने के लिए तैयार करते हैं। அப்படி வசனம் எழுதி வச்சிருக்கிறார். वैसे पवित्र शास्त्र में जैसे बता वो सबों का वचन है। அறிவு ஆத்மாவுக்கு போகிறது. நீதிமொழி 2:10. नीति वचन दूसरा 10 वचन लिखा। நீதிமொழியில் 2:10 வாசிக்கலாம். नीति वचन 2:10। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। यस। ஞானம் உன் இருதயத்தில் பிரவேசித்து அறிவு உன் ஆத்மாவுக்கு இன்பமாயிருக்கும் போது. पंजाबी पढ़ेंगे। नीति तब वचन तू 2:10। बुद्धिमान होवेगा हाँ। अते अपने ज्ञान तो आनंद प्राप्त करेगा। हाँ, फिर 10 दूसरा 10 वचन। तब तू बुद्धिमान होवेगा अते अपने ज्ञान तो आनंद प्राप्त करेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த ஆத்மா உள்ள இருக்கிற சோல் हमारा आत्मा में உள்ள வந்து இன்பம் உண்டாகிறது. आनंद आएगा, சந்தோஷம், மனமகிழ்ச்சி. खुशी, आनंद आएगा। இது அவருடைய அறிவு. वो उनका समझ है।
கிறிஸ்துவினுடைய வார்த்தையிலிருந்து வருகிற அறிவு मसीह यीशु का वचन के द्वारा आया हुआ समझ அது உள்ள போகும்போது ஆத்மா இன்பம், और हमारे हृदय में आनंद आ जाएगा, சமாதானம், शांति, விடுதலை, छुटकारा, பாதுகாப்பு सुरक्षित எல்லாமே கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. और धीरे धीरे हमारे पास आएगा। அப்ப ஆராயும் போது இதெல்லாம் ஆண்டவர் எழுதி जब வச்சிருக்காரு. हम खोजेंगे ये सारे बात हमारे पास आ जाएगा। அதே பூரண அறிவு வரும்போது परंतु जब पूर्णता समझ आएंगे तो கொலோசியர் கொலோசி கிதாப் 3:10 3:10 कोलोसी पुराना नया नियम में कोलोसियम 3:10 कोलोसी की तरफ 3:10 वचन और नया मनुष्य को पहन ले ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਰਚਨਾਹਾਰੇ ਦੀ ਸਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आमीन। नया मनुष्य को पहन लिए जाए जो अपने सृजनहार के स्वरूप में अनुसार ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नया बन जाता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। தன்னை சிருஷ்டித்தருடைய சாயல் கோப்பாய் பூரண அறிவு அடையும்படி புதிதாகப்பட்ட புதிய மனுஷன் தரித்து கொண்டிருக்கிறீர்களே. ये समझते और पूर्ण समझ में आएंगे तो परमेश्वर के सृजन का सृष्टि करता परमेश्वर के समान धीरे धीरे बनते जाएंगे। அறிவு பூரண அறிவா மாறணும். समझ और थोड़ा परिपूर्ण 7% में पूर्ण समझ में जाना चाहिए। ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 60 அதிகாரம் 80 அதிகாரம் இல்ல ஒரு 10 புத்தகத்தை வாசிக்கும் போது அறிவு வருகிறது. जब हम थोड़ा थोड़ा 5 अध्याय 10 अध्याय पढ़ते समझ आ जाता। அதை தேடி தேடி வாசிக்கும் போது जब ढूंढ ढूंढ के पढ़ने टाइम पर அதுக்கு பிறகு நீங்க அதை ஆராய उसको खोजने टाइम पर அறிவு அப்படியே வளர்கிறது. समझ बढ़ते जाएगी। 30% 60% மாறுது. उसके बाद 30% से 60% बदलते जाएंगे। 60% புதிய மனுஷனா மாறுறீங்க. उसके बाद धीरे धीरे हम नया मनुष्य बन जाता। உலகத்துல நீங்க அறிவு வளர பாருங்க. संसार में जब धीरे धीरे बढ़ते जाते देख लीजिए क्या हो जाता ஒரு है। பேங்க்ல கிளர்க் இருக்கிறாரு. जो बैंक में जो क्लर्क करता है அவர் உலகத்துல இருக்கிற அறிவெல்லாம் அவர் படிச்சுட்டே இருக்கும்போது संसार में जो वो पढ़ते जाता है அவர் 20 வருஷம் இருக்கும் மேனேஜரா மாறிடுறாரு. देख लीजिए एक साधारण बैंक में काम करते करते 20 साल के बाद वही व्यक्ति मैनेजर बन जाता है। ஆனா இங்க 20 வருஷம் ஆன பிறகு நம்ம ஒண்ணுமே ஆகிறது இல்லையே. बाद हम 20 साल होने के बाद कलीसिया में विश्वासी सामने ताली बजाते रहता आगे नहीं जाता। ஏன் அறிவு வளரல? क्यों हमारे समझ नहीं बढ़ता? போதன்ற மனதோடு நின்னாலும் हम क्या करते बस हो जाता ना बस बहुत इतना ही और उतना दूर नहीं जाऊंगा उपवास का प्रार्थना नहीं जाऊंगा प्रार्थना में रात्रिकाल का प्रार्थना नहीं जाएंगे बस उतना ही बहुत हो गया 2 रोटी बहुत हो गया। ஒரு அதிகாரம் வாசித்துட்டோம் एक अध्याय पढ़ते அதே திருப்பி வாசனை எடுது. अब वही भजन संगीता वही बार बार ना नीति वचन ना यशायाह नबी किताब ना नए में प्रकाश पढ़ते ही नहीं हम நம்ம மாறி மாறி படிக்கிறது இல்ல. हम उसको धीरे धीरे बार पढ़ते नहीं हम எல்லா புத்தகத்தையும் நம்ம தேடணும். हम सब पुस्तक को ढूंढना चाहिए எல்லாத்தையும் ஆராய்ந்து பார்க்கணும். सबको खोजना चाहिए। எதை தேடினீர்களோ அதை ஆராய்ந்து பார்க்கணும். ये जो ढूंढे आपने उसको खोजना चाहिए। எதை தேடினீங்களோ அதை தான் தியானம் பண்ணணும். जो ढूंढा आपने वही ध्यान करना चाहिए। தேடுகிறது எதுக்காகன்னு சொன்னேன். जो मैंने कहा क्यों ढूंढना चाहिए मैंने बताया। ஏன் ஆராயணும்னு சொல்லி இருக்கிறேன். क्यों मैं खोजना चाहिए वो भी बता रहा। ஆராயும் போது அறிவு जब हम खोजने से हमको समझ आएगा இந்த ஆத்துமாக்குள்ள போய் அறிவு விடுது. हमारा आत्मा में वो समझ आने के बाद छुटकारा के तैयार कर அந்த ஆத்மா புதிய ஆத்மா மாறுகிறது. वो आत्मा एक नवीनी बन जाता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। பகுத்தறிவு வரும்போது उसके बाद संपूर्ण पूर्णता में जाने टाइम पर அந்த மறு விசாயில் வந்து பரலோகம் போகிறோம். तब वही जो परिवर्तित हो गया परिवर्तित होने के बाद स्वर्ग राज्य की तैयारी कर देता है। 12 வாசிக்கலாம். ரோமர் रोमी किताब 12वां अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे। रोमी किताब 12वां अध्याय 12 वचन। रोमन चैप्टर 12 आशा में यस आशा में आनंदित रहो, हाँ। कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। और जब में पढ़ेंगे ना ਆਪਣੀ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ यस ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜਵਾਨ ਬਣੋ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। आमेन। நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷத்தை அறியாமல் 12:2 12:2 12 दूसरा वचन पढ़ेंगे।
वो या देवम 12 पढ़ते 12:2 पढ़ इस संसार के दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। அல்லேலூயா. हालेलुया। அங்கே பகுத்தறிவு வரும்போது அவர்கள் மறுரூபஸ்தாயில் பெறுகிறார்கள். देख लीजिए तुम्हारा बुद्धि नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलते जाना चाहिए। அல்லேலூயா. अच्छा नहीं पढ़ेंगे अपने आप ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਲਾ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ। அல்லேலூயா. तुम्हारा चाल चलन बदला दो, क्या दे? हाँ, बदलना चाहिए। वो கிறிஸ்துவை போல வந்துடும். हम उनका परमेश्वर के समान परिवर्तित होना चाहिए, அவரை போல வேலை செய்கிறோம். उसके समान होना चाहिए। பெரிய பெரிய காரியத்தை செய்வதற்காக கர்த்தர் நம்மை திட்டத்தை தீட்டுகிறார். हम हमारे द्वारा बड़े बड़े काम करने के लिए प्रभु तैयारी कर देता है। ஃபர்ஸ்ட் நான் பைபிள் ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது पहले साल में बाइबल स्कूल में पढ़ते हैं, எப்படியாவது இயேசு அறியணும், பிடிஎச் படிக்கணும், कैसे भी यीशु मसीह को जाने। பிடிஎச் வரை படிக்கணும், अब बीटीएस तक पढ़ाई किया, அவ்வளவுதான். बस उतना ही सोच रहे थे। ஆனா சத்தியத்தை அறியும் போது जब हम सत्य वचन को हम पढ़ने टाइम पर 1 கோடி சீசர்கள் உருவாகணும்னு அந்த பிளான் வந்துச்சு. तो उस समय पर 1 लाख 1 करोड़ 1 कोटि का चेले बनने के लिए मैंने तैयार करके प्रार्थना कर। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவ்வளவு பெரிய வேலையை கொடுத்துட்டார் ஆண்டவர். இப்போ उतना बड़ा काम हमारे हाथ में दे दिया। நீங்க என்ன நினைச்சிருக்கீங்க? நீங்க இதை படிச்சு முடிச்சா நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க? आप क्या सोचते हो? वचन पढ़ने के बाद आप क्या करना चाहते हैं? अभी 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद बच्चों पूछे जरूर पायलट इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे। आप बाइबल पढ़ने का खत्म होने के बाद क्या करेंगे? अच्छा, बहुत सारे प्रभु के काम है। झाड़ू लगाना भी प्रभु का काम है, गीत गाना भी प्रभु का काम है, टैक्स बांटना भी प्रभु का काम है। कौन से काम है? அது எது முக்கியமான காம் வேலை? बोलना चाहिए। कौन सा काम मुख्य काम है? वचन सुनाना। ஓகே. ஆத்மா ஆதாயம். हम आत्मा को ढूंढना चाहिए, आत्मा को छुटकारा करना चाहिए। நீங்க அப்படி ஒரு எண்ணம் வரும்போது ऐसे हम सोचेंगे तो உங்க கையில அற்புதம் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். आपके द्वारा अद्भुत काम जरूर होगा। தீர்க்க தரிசன உரைப்பீர்கள், भविष्यवक्ता भविष्यवाणी बन तय करेंगे, அடையாளங்களை செய்வீர்கள், अद्भुत काम चिन्ह और ஆண்டவருக்காக எழும்புவீர்கள், परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे, ஆண்டவருக்காக ஓடுவீர்கள், परमेश्वर के लिए दौड़ेंगे, படுத்து தூங்கறதுக்கு கூட உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்காது. और सोने के भी समय नहीं रहेगा। அந்த மாதிரி ஓட ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ऐसे ही दौड़ते रहेंगे। அதுக்கு ஏற்ற ஒரு அபிஷேகத்தை உங்க மேல ஊற்றுவார். ऐसे ही अभिषेक आपके ऊपर उंडेल दी जाएगा। அதுக்கு பிறகு உங்களை உட்கார சொன்னா உட்கார மாட்டீங்க. आप उसके बाद भैया बैठो तो नहीं बैठेंगे, दौड़ते रहेंगे। உங்களை தேடி अनेक ஜாதி ஜனங்கள்லாம் தேடி வருவாங்க. उसके बाद आप परमेश्वर के सत्य वचन को ढूंढने खोजने के बाद अनेक जाति लोग आपको ढूंढ कर आएंगे। அதுக்கு பேஸ்மெண்டே ஃபர்ஸ்ட் வசனத்தை தேடு, ஆராய், தியானம் பண்ணு. उसका पहले ने उसके बारे में ने हुआ है कि परमेश्वर के वचन को ढूंढना, खोजना, ध्यान करना। எப்படியாப்பட்ட கணக்கு போடறனா கூட किसी प्रकार का गणित लिखे तो भी उसका அந்த ஃபார்முலா தெரியலனா ஆளால் போடவே यदि முடியாது. उसको सूची नहीं पहचानेगी, क्या सूची बोलते उसको, फार्मूला को सूची, अगर जब तक सूची नहीं जोड़ेंगे उसका आंसर नहीं मिलेगा। அதனால பேஸ்மெண்ட் தெரியலனா நம்ம கட்டடத்தை கட்டவே முடியாது. जब हम बेसमेंट नींव नहीं डालेंगे इमारत नहीं बना सकता। सही அதனால बात தான் है। ஃபர்ஸ்ட் தேடி, इसलिए ढूंढना, தேடும்போது நீங்கள் அந்த வார்த்தை கரெக்ட்டா கண்டுபிடிச்சிருங்க. तो ढूंढने के बाद एक सही शब्द को खोज कर निकालना, கிறிஸ்துவையே கண்டுபிடிச்சிருங்க. सिर्फ मसीह के बारे में ही ढूंढना। லூக்கா 24:44ல एक वचन पढ़ेंगे, लूका सुसमाचार 24 अध्याय 44 वचन। हाँ जी, लूका 24:44। पढ़े। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੀਆਂ ਸਨ, आमेन। ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। அவர்களை நோக்கி, மோசே நியாயப்பிரமாணத்திலும்
தீர்க்கதரிசி ஆகமங்களிலும் சங்கீதங்களிலும் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறவைகள் எல்லாம் நிறைவேற வேண்டும் என்று நான் உங்களோடு இருந்தபோது உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டு வந்த விசேஷங்கள் இவைகளே என்றார். फिर उसने उसे कहा, ये मेरी बातें जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य की जितने बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और वचनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी सब पूरी हो. இயேசு பற்றி எழுதி வச்சிருக்கிறார். व्यवस्था में, भविष्यवक्ता में, वचन में यीशु के बारे में लिखा है. அவரே சொல்லிட்டார், இயேசுவே சொல்றார். वैसे उसके बारे में यीशु मसीह ने कहाँ लिख रखा? மோசேயுடைய நியாயப்பிரமாணம். व्यवस्था में, मूसा के व्यवस्था में. அப்படி மோசேயுடைய நியாயப்பிரமாணம் என்ன? मूसा की व्यवस्था मतलब क्या? मूसा की व्यवस्था, परमेश्वर ने मूसा को जो व्यवस्था दी गई, कौन सा वो भी वो बता रहे. कहाँ है आपके पास है? हाँ बोलिए. उत्पत्ति किताब, निर्गमन, 5 पुस्तक मूसा ने. उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, लेव्य और गिनती. हाँ और अजूब हाँ जी, अजूब की पुस्तक. हाँ कुछ ஆதியாகமம், யாத்திராகமம், லேவியராகமம், என்னாகமம், உபாகமம். उत्पत्ति की किताब, निर्गमन, लेवी, गिनती, व्यवस्था, 5 पुस्तक मूसा के द्वारा दिए गए. அதுக்கடுத்து இயேசு என்ன சொல்றார்? தீர்க்கதரிசன ஆகமங்கள். उसके बाद भविष्यवक्ता की पुस्तक है लिख रखा ना जी. அப்படினா என்ன? भविष्य मतलब भविष्य का पुस्तक मतलब क्या लेना? कितना पुस्तक भविष्य का पुस्तक? சங்கீதத்தை தவிர மீதி எல்லா புத்தகம், இயேசுவானந்து மல்கியா வரைக்கும். भजन संगीत के बाद जितने पुस्तक है, मलाकी पुस्तक, सब भविष्य, बड़े पुस्तक, छोटे पुस्तक, सब भविष्य का पुस्तक यीशु के बारे में बहुत सारे जगह पर लिखा है. அல்லேலூயா. அதுக்கடுத்து சங்கீதங்கள். उसके बाद भजन. அப்படின்னு அவர் சொல்றார் இயேசு. वैसे यीशु मसीह खुद का மரித்து உயிர்த்தெழுந்து வந்து और यीशु मसीह जिलाने के बाद, जीतने के बाद அவங்களுக்கு சொல்றார், वो अपने चेलों को बस बताए, மோசே நியாயப்பிரமாணங்களிலும் தீர்க்கதரிசன ஆகமங்களிலும் சங்கீதங்களிலும் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறதே. ऐसे पढ़ेंगे, पंजाबी पढ़ेंगे, 44 से पढ़ी. हाँ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੂਸਾ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਭਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ वो सब जरूर पूरा होगा. हालेलुया. आमीन. उसमें लिखा हुआ मेरा बारे में. यीशु मसीह खुद कहा मेरा बारे में, मूसा के पुस्तक में, भविष्य के पुस्तक में, भजन के पुस्तक में. எங்கே எழுதியிருக்கிறாரு? எங்கே எழுதுறாரு? कहाँ बताएंगे, कहाँ लिखा गया? ஆதியாகமத்திலிருந்து மல்கியா வரைக்கும் எழுதியிருக்கிறார். उत्पत्ति किताब से मलाकी पुस्तक तक लिखा है. அதுதான் பேசுறாரு. वो यीशु मसीह ने कहा. அப்ப என்ன போய் நீ தேடி கண்டுபிடிச்சீங்களா? मेरे बारे में जाके उसमें लिख आप ढूंढ क्या? ஏன் என்ன பற்றி தேடுன்றாரு? क्यों यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा ढूंढो जाके? நானே மரித்தே நானே உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறேன். मैं मर गया था, मैं तीसरे दिन जीवित उठा हूँ. நான் தான் உயிரோடு இருக்கிறேன். मैं जिंदा हूँ. அதனால என்னை தேடு. इसलिए मेरे बारे में ढूंढो. அப்ப நீ என்னை தேடினால் यदि आप मुझे ढूंढेंगे, நான் உன்னை உயிர்ப்பிப்பேன். मैं आपको जिलाऊंगा. என் வார்த்தை உயிரோடு இருக்கிறது. मेरा वचन जीवित है. நானும் உயிரோடு இருக்கிறேன். मैं भी जीवित हूँ. அந்த வார்த்தையை தேடு தேடு वचन தேடு. को ढूंढेंगे तो அதுக்காக நேரத்தை ஒதுக்கணும். उसके समय बिताना चाहिए. அது இரவு பகலும் அது மேல கண்ணு இருக்கணும். उसका रात और दिन उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए. அப்பதான் நம்மளே தேவன் ஒரு உருவாக்குற விதம் வருகிறது. तो इसलिए परमेश्वर का वचन ढूंढते हुए हमारा अंदर परमेश्वर का वचन का अंदर बनाएगा, अंदर का काम करते रहेगा. அதுக்கு ஒரு வாஞ்சை வேண்டும். उसके लिए लालसा चाहिए. அதற்கு ஒரு வைராக்கியம் வேண்டும். उसके लिए हम बड़ी जलन चाहिए. அது மேல ஒரு பசிதாக வேண்டும். उसके लिए भूखी चाहिए. அதற்காக கருசனை வேணும். उसके लिए बड़ी विचार चाहिए. அப்பதான் ஆண்டவர் நம்ம மேல இறக்க வைக்கிறார். इसी तब हमारे ऊपर दया करेगा. ஏதோ ஒரு ஸ்கூல் புத்தகம் மாதிரி படிக்கிறதுனால ஒரு பிரயோஜனம். सिर्फ पुस्तक, घर का पुस्तक, स्कूल का पुस्तक को समान नहीं पढ़ना चाहिए. அதனால உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை கிடையாது. हम सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा. இன்னிலிருந்து நீங்கள் ஒரு
ஒரு வைராக்கியத்தை நீங்கள் உருவாக்கணும். आज के दिन से एक जलन, मैं प्रभु का वचन कैसे भी 2 घंटा पढ़ूंगा मन लेकर, அதை படிக்கும்போது நான் தேடி தான் வாசிப்பேன். तो वचन पढ़ेंगे ढूंढेंगे तो मैं ढूंढूंगा, அதை தியானித்து தான் பார்ப்பேன். मैं ध्यान करूंगा, அதை ஆராய்ந்து பார்ப்பேன். उसको खोजूंगा, அப்பதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களுடைய நன்மைகள் தானா மோத ஆரம்பிக்கும். तभी तो हमारा अंदर भलाई अपने आप बनते जाएगा, உன் தேவையில் தானா வந்து மோதும். वो अपने आप का आवश्यकता जरूरतों का अपने आप पूरा की जाए. பணம் பொருள் ஒன்றுமே பெரிதல்ல ஆண்டவருக்கு. पैसा दौलत प्रभु का सामने कुछ भी नहीं. ஒரு நாள் ஒரு ஊழியக்காரர் டிவில பேசுறாரு. एक दिन टीवी में एक प्रसारक पासवान टीवी में प्रचार करते रहा. அவர் சொல்றாரு, இயேசு உன்னை விடுதலாக்குறார், यीशु मसीह को छुड़ाएगा, உன் வியாதி குணமாக்குறார், आपकी बीमारी ठीक हो जाएगा, உன்னுடைய சரீரத்துக்கு அத்தனை வியாதி உன்னை விட்டு வெளியே போகிறது. शरीर में सब प्रकार की बीमारी निकाल देगा. மகனே மகளே பயப்படாதே, ए मेरे भाई मेरे बहन डरो मत, இயேசு உன்னோடு பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். यीशु आपसे बात करते रहता. உடனே அங்க ஒருத்தர் பார்த்து கொண்டிருந்தார் டிவி. वो टीवी के सामने बैठ के एक व्यक्ति बैठे रहा. அவருக்கு உடனே விடுதலை ஆயிடுச்சு. एक व्यक्ति को तुरंत चंगा हो गया. அவர் உடனே அந்த டிவில இருந்து போன் நம்பர் கேட்டார், எடுத்து பேசினார். वो टीवी के नीचे भाग में मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर से उठाकर फोन में बात किया. அந்த பாஸ்டருக்கு போன் பண்ணார். वो पास्टर को फोन किए. உனக்கு ஒரு காணிக்கை நான் அனுப்பணும்னாரு. पास्टर जी आप टीवी में जब बात कर रहे ना, आप प्रार्थना के चंगे, मैं आपके लिए एक भेंट देना चाहता हूँ, मतलब दान देना चाहता हूँ. நான் வந்து अनेक हॉस्पिटल கோடிக்கணக்கில் செலவு பண்ணேன். मैंने बहुत सारे लाखों रुपए मैंने दवाखाने में खर्चा किया, ஆனா எனக்கு விடுதலை ஆகல. मुझे कुछ भी नहीं मिला, चंगा ही नहीं मिला. ஆனால் இயேசு ஒருவர் சொல்லி நீங்க சொன்னீங்க, எனக்கு குணமாயிடுச்சு. यीशु ही आपको चंगाई करने के लगा, अपने काम में तुरंत चंगाई हो ஒரு गई. சின்ன காணிக்கை நான் உனக்கு அனுப்புறேன், செக் मैं போட்டு छोटा सा दान भेंट आपको मैं भेंट देना चाहता हूँ. அது அனுப்பி வச்சாரு. और उसने भेंट दे दिया. எவ்வளவு அனுப்பிச்சிருப்பாரு? आप बता सकते कितना भेंट दिए होंगे पंजाबी में? எவ்வளவு அனுப்பி இருப்பார்? எவ்வளவு காணிக்கை அவருக்காக கொடுத்திருப்பாரு? बोलो ना, मैं अभी हम नहीं मांग रहे, आप डरो मत. कितना दिए होंगे चंगाई पाने के बाद? अंदाज से बोले 10 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया, जैसे पंजाबी में व्यक्ति में देते हैं. 2000 में हाँ जी, वेरी गुड. कुछ तो बोले आपने, इन लोग कुछ तो नहीं देते आप लोग. 1000 अच्छा 10 रुपये नहीं, आप அவரு ஓகே ஓகே அவர் அந்த காணிக்கை அவர் எவ்வளவு எழுதினார் தெரியுங்களா? आपको मालूम है कितना भेंट दिया? 90 கோடி. 90 करोड़ रुपये दान दिए. அல்லேலூயா. देवनाल भी नहीं बोल रहा, 10 रुपये भी नहीं बोला आपने. அல்லேலூயா. कितना कितना 90 करोड़. अजी माइक में खड़ा होकर प्रभु का दास कहते हैं, जरूर दिए. ये प्रभु பணம்லாம் பெருசு கிடையவே கிடையாது. 90 करोड़ अद्भुत रीति से वो टीवी ஏன்னா प्रसारण, வானம் அவருடைய சிங்காசனம், क्योंकि स्वर्ग मेरे सिंहासन, பூமி அவருடைய பாதப்படி, पृथ्वी मेरा पाँव का चौकी. உள்ள எல்லா அதிகாரம் அவர்கிட்ட இருக்கிறது. सब कुछ परमेश्वर का हाथ में है. அல்லேலூயா. அவரிடத்தில் நாம் கேட்கிறது என்ன? அவரை போல மாறுன்றார். हम परमेश्वर हमसे क्या मांगता है? मेरे समान तुम बनो, என்னை போல் உருவாகு. मेरे समान बनो. நான் பேசுற மாதிரி நீ பேசு, जैसे मैं कहता हूँ वैसे तुम भी कहो, நான் நடக்கிற மாதிரி நீ நட, जैसे मैं चलता हूँ वैसे तुम भी चलो, நான் எப்படி அற்புதம் செய்றேன் நீ செய், जैसे मैं अद्भुत काम कर रहा हूँ तुम भी करो, அதான் நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன். तभी मैं दूंगा. நீ புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகள் சீசராக்கு. तुम जाके सारे जातियों को सुसमाचार प्रचार कर उनका चेला बना. 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி செய்த அற்புதம் இன்னைக்கு நடக்கிறது. 2000 साल का पहले किया हुआ अद्भुत काम आज भी होगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. 2 பிள்ளைகள் மரித்து விட்டார்கள். मेरे इनके बेटे 2 இல்ல செங்கல்பட்டுல 2 பிள்ளைகள் ஒரு குடும்பத்துல மரிச்சிட்டாங்க. एक परिवार में इनके लिए अलग हो गया. इनके गांव में चंगलपट नाम के गांव में 2 बच्चे लोग मर गए. அவங்க உடனே எனக்கு போன் பண்றாங்க, वो तुरंत मुझे फोन किए, ஐயா இது மாதிரி எங்க பிள்ளைங்க செத்துட்டாங்க. दोनों बच्चे लोग मर गए, फादर साहब क्या करें? உடனே ஒரு ப்ரேயர் பண்ணி मैं तुरंत फोन किए, प्रार्थना किए फोन में. நீங்க ஊர்ல போய் பாருங்க, 2 பிள்ளை உயிரோட இருக்கணும். दोनों गांव में जाके जीवित रहना. அவங்க போய் ஊர்ல பார்க்கும்போது 2 பிள்ளை உயிரோட இருந்தது. उसके बाद गांव में जाके देखा वो दोनों बच्चे जिंदा हैं. அல்லேலூயா. தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. जो परमेश्वर का में कोई भी काम
असंभव அவர் नहीं। சமீபத்திற்கு தேவன், தூரத்திற்கு தேவன். परमेश्वर नजदीक भी है और दूर का परमेश्वर भी है। அவர் ரெண்டுத்தையும் வேலை செய்கிறது நம்முடைய ஆண்டவர். वो दोनों काम कर सकता है वो परमेश्वर। ஆனா நம்ம அவரை போல் உருவாகத்தான் இந்த வேதம். वो उनके समान बनने के लिए ही हम पवित्र शास्त्र। இதுல நீங்கள் எதெல்லாம் விடுகிறீங்களோ ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். जो कुछ वचन पढ़कर अपने अंदर से जो कुछ चीज आप नहीं छोड़ते हैं, आपका आशीष घटी होते जाएगा। இதை நீங்க பரிபூரணமா அறியணும். ये वचन पढ़कर संपूर्ण बनना चाहिए। இதுக்கு தான் நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறோம். इसीलिए हम क्लास लेते हैं। இதை அறிய 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 ये वचन को खोज कर ढूंढ कर पढ़ते हुए நீங்கள் குவாலிட்டியா மாறுகிறீங்க, தரமா மாறுறீங்க. हम अच्छी तरीके से अच्छी मनुष्य बन जाते हैं। நல்ல குணங்கள் உருவாகும். अच्छे गुण आपके अंदर आ जाएगा। தானவே ஆத்மா ஓடி உன் மேல விழும். वो अपने आप आत्मा लोग आपके पास आएगा। நீங்க கூப்பிட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. आपको बुलाने की जरूरत नहीं होगा। ஏனென்றால் அன்பு இழுத்துக்கொள்ளும். क्योंकि प्रेम सबों की खिंचाई कर देता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதுதான் இயேசு நம்மிடத்தை கேட்கிறாரு. इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है அன்பு உருவாகணும், நீ தேடணும். यदि प्रेम होना चाहिए तो ढूंढना चाहिए தியானம் பண்ணணும். और ध्यान करना चाहिए। தியானம் பண்ணும் போதெல்லாம் அன்பு உருவாகிறது. और जब आप ध्यान करते रहेंगे और प्रेम बढ़ते जाएंगे, ஆலயம் போது அறிவு உருவாகுது. उसके बाद समझ आ जाएगा। எங்கெல்லாம் தியானன்ற வார்த்தை இருக்குது மூன்றாவதுக்கு வாங்க இப்போ. अब तीसरी बात हम देखेंगे சங்கீதம் 1 भजन संहिता पहला अध्याय 2ஆம் வசனம் 3ஆம் வசனம். दूसरा वचन और तीसरा वचन। भजन संहिता पहला अध्याय दूसरा वचन और तीसरा वचन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமா இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அவன் நீர்க்காலையில் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலை உதிராதிருக்கிற மரத்தை போல இருப்பான். அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். दूसरा वचन में लिखित पंजाबी पढ़ेंगे 2-3। प्रभु ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਵਗਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। அல்லேலூயா. ਮੌਸਮ ਤੇ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਦੇ ਕਮਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आमीन। ஆமென். प्रेज द लॉर्ड। தியானம் பண்றதுல கனி உருவாகுது. जो परमेश्वर के व्यवस्था से प्रसन्न होता है, ध्यान करते रहता है। கனி என்றால் நமக்குள் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற அந்த 9 விதமான கனிகள். फल मतलब परमेश्वर दिया हुआ आत्मिक फल, 9 फल। அது அன்பு, प्रेम, சமாதானம், शांति, சந்தோஷம், आनंद, அந்த இடத்துல இச்சடக்கம், धीरज, விசுவாசம், संयम, विश्वास, தயவு, இதெல்லாம் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். नम्रता, ये परमेश्वर देता है। இது உருவாகுது நமக்குள்ள. हमारा अंदर उत्पन्न होने का வசனம் கனிகளை உருவாக்கும். वचन बीज है उसको फल उत्पन्न करने का। ஆவியான தனக்கு வரங்களை கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார். परमेश्वर का आत्मा वरदान हमको देगा। பிதா தாளந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார். और पिता परमेश्वर उसका योग्यता बना देता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு கனிகளை உருவாக்க அவர் எப்போதும் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். यीशु मसीह हमारा अंदर फल उत्पन्न होते हैं कि नहीं देखते रहता है। ஆவியானவர் தன்னுடைய வரங்களை கொடுத்து அற்புத அடையாளங்களை செய்ய வைக்கிறார். पवित्र आत्मा अपने वरदान देकर आत्माओं के द्वारा चिन्ह और चमत्कार करवाता हमारे द्वारा। பிதா தாளந்து கொடுத்து உன்னை அந்த தாளந்தால் பயன்படுத்துகிறார். और पिता परमेश्वर आपकी योग्यता को देखते हुए उसके अनुसार काम भी करवाता है। அல்லேலூயா. ஆனா அந்த கனி இல்லாம வர இருந்துக்குன்னு தாளந்து இருந்தா பிரயோஜனம் இல்லை. जो फल नहीं तो उसकी योग्यता रख के कुछ काम का नहीं होता। ஏன் நான் 100 பிசாசுல துரத்த முடியும். 100 பிசாசுல துரத்த முடியும். हम 100 दुष्टात्माओं को निकाल सकते हैं। ஆனா பிசாசு குணம் எனக்குள்ள இருந்தா நான் வரிகளை போக முடியாது. हाँ, शैतान का गुण हमारे अंदर है तो शैतान भी नहीं निकाल सकता, वो प्रभु के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर सकते। ஆனா பிசாசை துரத்திடலாம். வரத்தை வாங்கி दुष्टात्मा के कैसे भी आप प्रभु का वचन से सत्य से भगा सकते हैं। நீங்க முழங்கால் படியிட்டு घुटने में रहकर எனக்கு எல்லா வரம் கொடுங்க ஆண்டவரே, ये प्रभु मुझे 9 वरदान मुझे दीजिए, प्रभु कहलाएंगे। அப்படியே கொடுத்துருவாரு. वो प्रभु जरूर देगा। ஆனா அதை வாங்கி போய் अब उसको लेके जाके அந்த கெட்ட குமாரன் எப்படி கெட்டு போயிட்டானோ அது மாதிரி தான் கெட்டு போயிடுவான். जैसे चुपके पुत्र कैसे अपने पिता का संपत्ति लेके बर्बाद हो गया,
वैसे ही हम उपयोग ठीक तरीके से उपयोग नहीं करते, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ஏன்னா பிதாவின் சித்தத்தை செய்ய முடியாது. हम प्रभु की इच्छा को काम पूरा नहीं कर सकते। அவர் கேட்பார் கடைசி நாட்களிலே. अंतिम दिन में हमारा परमेश्वर हमसे हिसाब। அப்ப நீங்க சொல்லுங்க, நான் பிசாசை துரத்தினேன், अब तो बोलेंगे प्रभु में दुष्ट आत्मा निकाला था, அற்புதங்களை செய்தேன், अद्भुत काम किया था, அடையாளங்களை செய்தேன், मैंने आश्चर्य काम किया था। ஆனா இயேசு சொல்றாரு, உன்னை அறியேன். यीशु में से कहा, मुझे पहचानता हूं नहीं मैं तुझे। சொல்வார் ஆண்டவராக இயேசு. जरूर बोलेगा, அதனால தான் மிக அவசியம் கனி. क्योंकि बहुत जरूरत है फल। கிறிஸ்து நமக்குள்ள வரணும்னா, मसीह हमारे अंदर आना चाहिए, तो அவர் நமக்குள் உருவாகணும்னா, हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए, तो அவருடைய வார்த்தைக்கு நீங்கள் மிக மிக நேரத்தை ஒதுக்கணும். परमेश्वर का वचन के लिए समय बिताना बहुत जरूरी है। அல்ல எங்க தியானலான்ற வார்த்தை வருகிறதோ, जहाँ जहाँ इस वचन में लिखा करना जी, दूसरा वचन में उसकी ध्यान। व्यवस्था से प्रसन्न होता, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता। लिखा ध्यान और वचन में ढूंढना चाहिए, ध्यान कहाँ कहाँ आता है, எதை தியானம் பண்ண ஏற்கனவே சொன்னேன் நான். कौन सी बातों को ध्यान करना वो मैंने நீங்க बताया। எதை தேடினீங்களோ அதை தான் உள்ள வச்சு தியானிக்கணும். जो ढूंढते हो वो ही आपका अंदर रखकर ध्यान करना चाहिए, அதை தான் தியானிக்கணும். वही ध्यान करना चाहिए। சும்மா பைபிள் சும்மா அப்படியே படிக்கூடாது. सिर्फ वचन அப்படி को पढ़ते पढ़ते नहीं, எதைக்காக படிக்கிறோம், எதுக்காக படிக்கிறோம், किस बातों के लिए हम वचन पढ़ते हैं, அந்த வார்த்தை எங்க இருக்கு, இயேசு இருக்கிறாரா? जो बात लेके हम पढ़ते हैं वो वचन में यीशु है क्या, वो शब्द ढूंढना चाहिए। அன்ன பறவை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. एक एक पक्षी है जिसमें शुद्धता पाई जाती है। அது என்ன செய்யணும், ஒரு பால்ல நீங்க மிளகாத்தூள் புளியை போட்டு கரைச்சி வச்சுட்டா கூட பாலை மட்டும் குடிச்சிட்டு எல்லாத்தையும் விட்டு போயிடும். एक पक्षी है, सफेद पक्षी है, एक दूध में मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर मिलाकर रख देंगे ना, तो सिर्फ दूध पिएंगे, हल्दी और ना या हल्दी और मिर्ची पाउडर ऐसे छोड़ देगा। हालेलुया. समझ गया? ऐसे एक पक्षी है, मालूम है, सिर्फ उनको दूध पिएंगे, मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर अलग रहेंगे, वो नहीं लेंगे। நம்ம வேதத்துல எல்லா குறித்து எழுதி இருக்கிறது. पवित्र शास्त्र में सारे बहुत सारे बातें लिख कर रखा, ஆனா எல்லாமே நமக்கு சாலையா கிடையாது. पर उस बातों को हम पूरा हृदय में रख नहीं सकते। எது வெளியே இருக்கணும் அது வெளியே இருக்கணும், जो बात बाहर है ना वो बाहर, உள்ள எது வரணும் அது உள்ள जो வரணும். हमारे हृदय में रखना वो हमारे हृदय में रखना चाहिए। யூதாஸ் காட்டி கொடுத்தான். यीशु मसीह को जो यूदास कोरिन्थ भक्ति यीशु को पकड़वा कर दिया, அதே யோசனை தான் அது உருவாயிடும். यदि उसके बारे में सो योदा यहूदी उसने क्यों पकड़ो, उसके समान हम भी बन जाएंगे। அதாவது அதை யோசிக்க கூடாது, அது வெளியே இருக்கணும். उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, அந்த வார்த்தை வெளியே இருக்கணும். वो बात बाहर रखना चाहिए। கிறிஸ்டியன் வார்த்தை உள்ள வரணும். मसीह यीशु के बात जो हमारे अंदर आना चाहिए। ஏன்னா வார்த்தையில தான் எல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது. वचन शब्द में छुपा रहता है। ரெண்டு தான் நமக்கு முக்கியம், ये दो बात जरूरत है, கனி அறிவு. फल और समझ। இது ரெண்டும் இல்ல அப்படின்னா இந்த பூமியில வாழறது ரொம்ப கடினம். ये दोनों फल और समझ नहीं तो हम रहने नहीं पाएंगे, हम समझ में नहीं पाएंगे। இயேசு சொன்னாரு, நீங்கள் எங்க போனாலும் சர்ப்பத்தை போல இருங்க, புறாயை போல கபற்றனா இருங்க. यीशु मसीह जहां भी तुम जाएंगे सर्प समान बनो और कबूतर के समान बोले बनो। ஏன் சர்ப்பத்தை போல இருக்க சொன்னாரு? क्यों सर्प के समान क्यों बनो? அது ஞானத்தை அறிவு குறிக்கிறது. क्योंकि वो बुद्धि समझ को बुद्धिमानी के अनुसार देखते रहती है। ஏன் புறாயை பற்றி சொன்னாரு? क्यों कबूतर क्यों कहा? அதுக்குள்ள கசப்பு தன்மை இல்லை. उसका अंदर कबूतर के अंदर एक कड़वाहट नहीं रहता। அல்லேலூயா. அப்ப நம்ம வெளியே போகும்போது புறாயை போல இருக்கணும், क्यों बाहर जाने पर हम कबूतर के समान भी रहना चाहिए, ஞானம் உள்ளவங்களா இருக்கணும். हम समझ बुद्धिमानी के अनुसार भी रहना चाहिए। சிலருக்கு ரொம்ப புறாவை போல இருப்பாங்க, कुछ लोग बहुत नम्रता धीरे धीरे रहते ही जरूर है। ஆனா பிசாசு என்ன பண்ணுவான், पर शैतान क्या करता मालूम? அந்த அவங்க கிட்ட வந்து उसका पास आकर நயங்காட்டி और घुमा फिरा कर அவங்களே தள்ளி சாத்தானுடைய வழியை वो தள்ளிடும். शैतान को उसमें गिराने की तैयार करेगा। அதாவது ஞானமும் இருக்கணும், அறிவும் இருக்கணும், கனியும் இருக்கணும். समझ भी रहना चाहिए, फल भी रहना चाहिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। இது ரெண்டும் எப்படி உருவாகுது? ये दोनों कैसे दोनों हमारे अंदर आएगा? கனி எப்படி உருவாகுது, அறிவு எப்படி உருவாகுது? तो फल कैसे उत्पन्न होगा और परमेश्वर की सामर्थ कैसे आएगा? நீங்க சொல்லுங்க. फल भी आएगा, समझ दोनों कैसे आएगा? अभी हमने बताया था। विचार करिए। வசனத்தை ஆராயும் போது போஜனத்தை மில்தாது. परमेश्वर के वचन को खोजने से, मनन அறிவு. से, मनन करने से கனி எப்படி வருது? फल कैसे आएगा? मनन करने से।
கனி फल कैसे आएगा? स्वीकार करने से। आत्मा में रखकर தியானிக்கும் போது. ध्यान करने का। தியானம்னா என்ன? ध्यान मतलब क्या? தியானம். अभी हमने पढ़ा था ना, भजन संहिता पहला अध्याय 2-3 में। தியானம் என்ன? से मगन रहने से, खोजने से मगन रहने हाँ, से। खोजने से, मगन रहने से। और தியானம் என்பது சிந்திக்க வேண்டும். Contradictions. सोचते रहना चाहिए, बार बार। அந்த வசனத்தை தொடர்ந்து நீங்க சிந்திக்கணும். वो वचन को बार बार सोचते रहना चाहिए। எப்படி பேதுரு ஆண்டவர் சொல்ல நீ என்னை 3 முறை மறுதலிப்பாய். यीशु मसीह ने पतरस को 3 बार मुर्गा चिल्लाने से 3 बार मुझे इनकार करेगा। அப்போது ஒரு நாள் சேவல் கூவிற்று. एक पहली बार मुर्गा चिल्लाने लगी, அதை உடனே அந்த வசனத்தை அவன் நினைவு கூர்ந்தான். तुरंत उसने यीशु मसीह की कही हुई बात को स्मरण आया। உடனே அவன் மனம் கசந்து அழுதான். उसने बाहर जाके भजन समाचार 26 अध्याय आखिरी 75 वचन में वो बाहर जाके फूट कर रोने लगा। ஏன்னா வசனம் நினைக்கும் போது உள்ள போயிடுது. जब वचन हम सोचते हैं हमारे अंदर आता है, நினைவுல தான் வந்து பிசாசு நுழைவான். हमारे विचार में प्रभु का वचन आना चाहिए। நமக்குள்ள பிசாசு நுழையத்துக்கு உங்கள் சிந்தனை கரெக்டா வச்சு கிறிஸ்து சிந்தையா இருந்தா பிசாசு உள்ள போக மாட்டான். मसीह का विचार है, शैतान अंदर नहीं जाएगा। வேற ஏதாவது யோசிச்சீங்கனாலும் உள்ள போயிடுவான். यदि हम और संसार के बात पड़ोसी के बात सोचेंगे, शैतान अंदर घुसेगा। பணத்தை குறித்து யோசிச்சா பணம் மூலமா பிசாசு உள்ள போகும். यदि पैसे के बारे में सोचेंगे, शैतान पैसे को दोहराएगा। அதனால எப்பவுமே தவறானதே நம்ம யோசிக்க கூடாது. तो गलत बातों को नहीं सोचना चाहिए। கிறிஸ்துவின் வார்த்தையை தேடி அதை மட்டும் தான் நீ சிந்திக்கணும். அதுக்கு தான் தியானம். वचन के बारे में बार-बार सोचना चाहिए। அப்படிப்பட்டதான் நீர்க்கால்கள் ஓரமாய் நடப்பட்டவளா இருப்பான். इसीलिए भजन संहिता पहला दिन तीसरा वचन में बहते नाली किनारे पर लगा हुआ एक वृक्ष के समान रहता है। நீர்க்கால்னா என்ன? बहती नाली किनारे मतलब क्या? நீங்களே ஒரு கிணலா மாறுறீங்க. वो आप एक जीवन आपके नदी के समान है। நீங்க போகிறதெல்லாம் ஜனங்க வரும். जहाँ आप जाएंगे लोग आपके पीछे जाएंगे। எப்படி ஒரு கிணல் இருக்கிறதோ जैसे कि नदी बहते அது रहते, ஆடு மாடு மரம் செடி எல்லாமே பசுமையாயிடும். एक नदी बहते रहते हैं, पर जहाँ गाय बैल पौधे पेड़ उनमें से पानी खींच कर बढ़ते जाते रहते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க அது மாதிரி இருந்தீங்கன்னா उसी प्रकार आप है, உங்களுக்கு யாரெல்லாம் வராங்களோ जो भी आपके पास आएगा அவங்களாம் பலன் அடைந்து ஆண்டு बलवंत होना चाहिए। அவங்களுக்காக ஊழியம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். उनके लिए आप सेवकाई भी कर உங்களை सकते தேடி வருவார். हैं, वो आपको ढूंढ कर आएंगे। அதுதான் நம்மளை நீர்க்காலா வைக்கிறார். इसीलिए अब बहती नाली किनारे पर आना चाहिए। இரண்டாவது இலை உதிராத மரத்தை போல வைக்கிறார். दूसरी बात, उसके पत्ते का भी मुरझाता नहीं। அந்த இலை கீழே விடவே விடாது. भजन संहिता में लिखा ना जी पहला तीसरा उसका पत्ती कभी मुरझाते नहीं। அது எப்பொழுதுமே அந்த இலையிலே குணம் இருக்கிறது. उसका पत्ती हरा रहता, उसका गुण भी रहता, அதுல வந்து ஆரோக்கியம் இருக்கிறது. उसका चंगाई भी रहता। அந்த இலையிலே ஒரு மனுஷன் சுகமாகிற குணம் उसका இருக்கிறது. पत्ती में मनुष्य को आरोग्य चंगाई रहने का एक गुण भी रहता। அந்த மரத்தில கனி புசிக்கும் போது நித்திய ஜீவனை பெறுகிறார்கள். सिर्फ भारतीय नारी के मात्र ने पत्ती मात्र ने उसका जो फल वो खाएगा वो अनंत जीवन की तैयारी। ஏன் அப்படின்னா நீங்க சொல்றதெல்லாம் அவங்க ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க. क्योंकि जो भी बोलेंगे वो ग्रहण करेगा। ஏன் அப்படின்னா உங்ககிட்ட வந்து உண்மை இருந்தது, क्योंकि आपके पास सच्चा है, சத்தியம் இருந்தது, आपके पास सत्य है, நடை கிறிஸ்துவின் நடைகள் இருந்தது. मसीह का चाल आपके पास है, அவரை போல வாழுகிறீங்க. उनके समान बनते हो। அல்லேலூயா. எத்தனை பேருக்கு இன்னைக்கு புரிஞ்சது? कितने लोग को समझ में आया? கரங்களை தட்டி தேவ நாமத்தை जोर से ताली बजाकर प्रभु। இப்பொழுது சாட்சி நேரம். जो अभी मैंने बताया वो गवाही के समय, आपके समझ में तो 2 शब्द बोल सकते हैं गवाही के समय। अगर समझ में आया, ढूंढना खोजना ध्यान करना, आओ जो 2 शब्द का गवाही, ताकि आपके अभी आप लोग का टाइम है, हमारा कदम हो गया। सबको जय श्री जी। सरजी दीदी ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇੱਕ ਫਲਵੰਤ ਪੇੜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ
ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਮਗਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। आमीन। तो भाई बहन और कोई है? आओ। वो सीखे वो बोलो। यदि आपको समझ आए तो जरूर 2 शब्द माइक में बोलिए। माइक सारे के जैसे जय श्री माइक ला के दी। आदरणीय भाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इतनी दूर से हमें परमेश्वर के वचन के लिए, उसका सुसमाचार सुनाने के लिए यहाँ पर हमारे बीच में आए हैं। और हम वचन की गहराइयों में जब जाते हैं तो परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं, और परमेश्वर को जब हम खोजते हैं तो उसको परमेश्वर को हमें बार बार पढ़ना पड़ता है। और कई शब्द ऐसे होते हैं जो कि नहीं समझ में आते, पर परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपने खोजियों को ढूंढता हूँ। तो मुझे समझ में तो आता है, कभी थोड़ा बहुत थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। परमेश्वर का वचन सत्य है और महान है और सरल जय श्री। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कोई चीज रखो भाई। कौन ले रही है? सबको जय यीशु की। जो आज का मेन टॉपिक था कि हमें खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए, और फिर हम पाते हैं, फल आता है। वचन को जब हम बार बार पढ़ते हैं, जब बार बार पढ़ेंगे वो हमारे अंदर समाएगा। जब हमारे अंदर समा जाएगा तो वो चीज़ें हमारे चाल चलन में वो आ जाएंगी, वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा, वो फल का रूप ले लेगा। और एक्चुअल वचन का कार्य ही ये है, इसलिए ही हम बाइबल बार बार पढ़ेंगे, अध्ययन करते हैं, मेडिटेट करते हैं। जब किसी चीज़ को बार बार पढ़ के उस पर ध्यान लगाते हैं, वो हमारे अंदर आ जाती हैं, वो हमारे करैक्टर में आ जाती हैं, और जब करैक्टर में आएंगी वो दिखाई देगा सबको, और वो फल का रूप ले लेगा। थैंक यू। और कोई? पिछली बार आपको सिखाया गया भजन संगीता लेके दूसरा तीसरा कौन से शब्द बार बार आता है, 3 बार 7 बार। अब उसको सिखाया हमने, एक एक अध्याय में ढूंढो, बार बार पढ़ो, आप समझ में तो हमको पूछो, उसमें ढूंढ कर हमारे हृदय में रखने से ही परमेश्वर फलवंत कल्याण क्या करेगा। हालेलुया। गवाही है कि अभी जो हमें होमवर्क था, मैंने पहले क्लास नहीं अटेंड किया था, लेकिन होमवर्क जो था वजन संहिता जो हमने पढ़ा, बहुत बार पढ़ा था, पर जो अभी हमने पढ़ा और उसमें जो मनन चिंतन किया, खोज की, उसमें कुछ टॉपिक थे, मुख्य वचन, मुख्य शब्द, मुख्य संदेश और प्रार्थना। तो उसके द्वारा हमें बहुत सारी भजन संहिता में से ही नई बातें पता चली, और फिर प्रार्थनाएं भी अद्भुत तरीके से वो हुआ, अद्भुत तरीके से प्रार्थनाएं की उसमें लिखा है, और फिर हमें बहुत बातें भी उसमें से सीखने को मिली। आमीन। अंदर प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिली। सभी को जय यीशु की। मैंने भी भजन संहिता पढ़ा है। मैं भी BTH की डिग्री के लिए, मतलब कि मुझे ये नहीं है कि मुझे कोई डिग्री मिले, मैं चाहती हूँ कि मैं वचन में, परमेश्वर में, उसकी प्रेजेंस में आगे ही आगे बढ़ती जाऊँ। और जब इन दिनों में ये मैं पढ़ना अपना करती थी, मतलब कि मुझे कहीं ना कहीं होता था कि हाँ मैंने अपना करना है, मैंने प्रभु का काम करना है, मैंने उसका वचन पढ़ना है, उसकी प्रेजेंस में रहना है, प्रार्थना में जाना है। तो मतलब कि जैसे कैसे भी मैं करके, मैं चाहे थकी भी होती थी, चाहे कुछ भी था, और मैं कोशिश करती थी कि हाँ अगर मैं सब कामों को मैनेज कर सकती हूँ तो मैं क्यों ना अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु को भी, उसका भी ध्यान करूँ, उसके भी प्रेजेंस में जाने की कोशिश करती रही। और मुझे बहुत मेरा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, बहुत ही मज़ा आया, मतलब कि। और कभी कभी मेरे हस्बैंड ये भी कह देते हैं ऐसे ही, ये तो क्या करती रहती है, क्या पढ़ती रहती है, अगर ये तो पढ़ाई कर ले तो कोई ऑफिसर बन जाती। तो मैंने कहा मैं तो प्रभु के घर में ऑफिसर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये पढ़ती हूँ। तो आज जो इन ब्रदर्स ने हमें सिखाया है मुझे बहुत अच्छा लगा है। इन्होंने सिखाया कि वचन को खोजना, उस पर ध्यान केंद्रित करना और उसको ढूंढना। और मैं चाहती हूँ कि हम ऐसे ही अपनी लाइफ में आगे अपना टाइम को मतलब कि करें कि हम भी उसको
खोजें, ढूंढें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। और जैसे इन्होंने बताया कि वचन ही जीवन है और जीवन ही खून है और खून ही आत्मा बन जाता है। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें इतनी अच्छी बातें सिखाई हैं और इनका थैंक्स करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इतनी दूर से हमारे लिए अपना वचन लेके आए हैं, सुसमाचार लेके आए हैं। थैंक्स अलॉट इनका बहुत बहुत। सभी को जय श्री। और कोई है? कोई आ सकता है? आप लोग जो समझ लिया वो बता सकते हैं और भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ। सारे ने जय श्री और पास्टर जी ने जय श्री। सो मैं आज पास्टर जी का बहुत धन्यवाद करती हाँ कि आज इन्होंने वचन को लेके जो भी समझाया है और बहुत गहरा अध्ययन करवाया है कि वचन का साड़ी जिंदगी च होना कितना जरूरी है। क्योंकि हर इंसान वचन तो पढ़ता है पर उन्हें किस तरीके ना लेना चाहिए, उन्होंने अपनी जिंदगी किस तरह लेना चाहिए ये समझ दी होनी बहुत जरूरी है। वचन में इन्होंने जिस तरह कहीं गहरा अध्ययन करना चाहिए वा। मैं कहती हाँ गहरा अध्ययन कि जिस तरह से अपने शरीर की रोटी खाने उन्हें चबा के खाने उन्होंने अपने पचाने ठीक उसी तरह वचन भी खाना चाहिए वा, खा के उन्होंने पचाना चाहिए वा। वो इस तरह पचे कि साड़ी आंतरियां में चला जाए। एक बार परमेश्वर कहता है कि जो मैं अपने वचन को तेरी हृदय के पटियां ऊपर लिखांगा। बाकी जो अगर इंसान कोई भी सच्चे माना परमेश्वर की हजूरी च बचन मंगता है तो परमेश्वर उसने जरूर देते हैं। और मैं सच दिल तो धन्यवाद करता हाँ इन्हों का कि इन्होंने अज बहुत वधिया सिखाया, साड़ी जिंदगी एक नई राह पर लैके गया। मैं परमेश्वर का सब तो बड़ा धन्यवाद करती हाँ और मैं पास्टर साहब का भी धन करती हाँ और मैं सब तो ज़्यादा अपने भाजी प्रभु के सेवक का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने साढ़े लिए एक मार्ग रास्ता खोलिया है। सो मैं फिर एक तो बारी सब का धन्यवाद दिल तो करती हूँ। पीछे से सभी को जय श्री, सबको भी जय श्री। ये जो BTH की डिग्री का काम था, मेरा सिलेबस था, ये मैंने कल रात को ही पूरा किया है मुश्किल से, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ। तो वहाँ जब मैं काम कर रही थी, कल की बात है, तो मेरे पास एक मेरे स्टाफ में लड़की है, मैं काम कर रही थी और मैंने उसको बोला कि तू सिस्टम पे थोड़ा ध्यान दे तो मैं अपना थोड़ा काम कर लूँ, मैंने फिनिश करना है। कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं प्रभु का काम अपने दिल से अच्छे तरीके से करूँ, कि मेरा काम पेंडिंग ना रहे। जब तक प्रोग्राम है तब तक मेरा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। और वो मुझे बोल रही दीदी लाओ मैं कर देती हूँ, आपको तो समझ नहीं आ रहा, मैं कर देती हूँ। तो मैंने उसे बताया कि अगर तू करेगी तुझे पहले इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर तेरी समझ में आएगा तभी तो लिख पाएगी, और इसको पढ़ने और समझने के लिए तुझे प्रभु को जानना पड़ेगा। तो वो बोल रही फिर दीदी ये तो फिर आपका काम टफ है, ये आप ही करो, मैं सिस्टम पे ध्यान दे लेती हूँ। और जैसे आप आज इन्होंने बताया कि वचन जब हमारे शरीर के जब हमारे अंदर जाता है, जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तभी तो वो हमारे अंदर कार्य करेगा। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वैसे मैं बाइबल बहुत कम पढ़ती हूँ, लेकिन ये जो हमारा सिलेबस था इसकी वजह से मैं बाइबल के साथ और ज़्यादा अटैच हो गई हूँ। अब कोई है? हालेलुया। என்னுடைய மனம் என்னென்றால் நீங்கள் நல்ல கற்று தேரணும் இந்த பகுதியில். मेरे विचार क्या है वो है कि हर वक्त पढ़कर अच्छी बढ़ना चाहिए। அவருடைய சித்தத்தை செய்வதற்கு அவரை போல மாறணும். उसको इच्छा को पूरा करने के लिए उनके समान हम बनना चाहिए। அவருக்கு தெரியும், எல்லாமே தெரியும் ஆண்டவருக்கு. हमारे परमेश्वर आपके बारे में हर वक्त के बारे में अच्छे से जानते हैं। அதனால தான் நம்ம கையில வேதத்தை கொடுத்துட்டாரு. इसलिए पवित्र शास्त्र को हमारे हाथ में दे दिया। இந்த புத்தகம் வந்து ஒரு வாக்குத்தத்த புத்தகம் அப்படி நினைக்க கூடாது. ये पवित्र शास्त्र सिर्फ प्रतिज्ञा है, आशीष का वचन मात्र नहीं सोचना। ஒரு தீர்க்கதரிசன புத்தகம்னு நினைக்க கூடாது. सिर्फ भविष्यवाणी पुस्तक नहीं सोचना। இது வந்து ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள். ये पवित्र शास्त्र में आपके लिए हमारे जीवन के बारे में लिख रखा। நம்ம எப்படி உயிரா இருக்கிறோமோ அது மாதிரி இந்த வசனம் உயிரா இருக்கு. जैसे हम जीवित है, वचन चुप रहना, हम वचन भी जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। நம்ம உயிரோட உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். हम जीवित के साथ हम बैठे हैं। ஆனா இந்த வசனம் உனக்குள்ள போச்சுன்னா நித்தியத்துக்குள்ள போய் சேரும். ये वचन आपके अंदर जाएंगे, आप आनंद जीवन प्राप्त करेंगे। இங்க ஒரு படி மேல போறோம்.
यहाँ एक एक कदम हम ऊपर जाएंगे। அதனால இதைத்தான் நம்ம அறிந்து கொள்ளணும். ये वचन ही हमको जानना चाहिए। நிறைய சப்ஜெக்ட் இருக்கு, बहुत सारे विषय हैं, ஆனா நீங்க அதை கற்றுக்கொள்கிற விதம் இருக்குது பாருங்க, அது முக்கியம். उसको खोजने का, जो ढूंढने का, पढ़ने का तरीका है ना, அந்த பேஸ்மெண்ட் கரெக்டா போட்டுட்டோம்னா एक सही नींव डाल दिया, அதுக்குரிய நீங்க உங்க பின்னாடி வர சந்ததியெல்லாம் உருவாயிடும். उसी प्रकार आपके पीछे जितने लोग आए वो बढ़ते जाएंगे। உங்களை பார்த்து நிறைய ஆத்துமாக்களை கத்தர் கொடுப்பார். आपको देखकर बहुत सारे लोग आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। நம்மளால எதையும் விடுவிக்க முடியாது, हमारे हाथ में कुछ छोड़ नहीं सकता, ஆனா வசனம் நம்மளை விடுவிச்சிடும். परमेश्वर का वचन हमको छुड़ाएगा। இது இருக்கிற இடத்துல இருந்தா அது விடுதலை ஆக்குது. तो यदि वो वचन हमारे हृदय में रहेंगे, वो जगह पर रहना चाहिए। ஒரு मருந்து எடுத்து ரத்தத்துல இருந்தா தான் அது விடுதலை ஆகும். वो जो गोली खाते हो हमारे खून में मिलाना चाहिए, तब तो बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, पाँव दर्द, घुटने दर्द ठीक होता, मिलाना चाहिए, खून में मिलना चाहिए। அதே மாதிரி இந்த வார்த்தை நம்ம ஆத்மாவுக்கு போயிடுச்சுன்னா उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमारे अंदर गया, நம்முடைய ஆத்மா சாயல் கிறிஸ்து சாயலா மாறும். मसीह के समान हम भी स्वभाव बन जाएंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நாள்ல நாம் ஜெபித்து முடிக்கலாம். आइए इस पहले सेशन को प्रार्थना के साथ समाप्त करें। பாஸ்டர் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்களா? पास्टर जी कुछ बोलना चाहिए अभी? पहले सेशन को समाप्त करेंगे। सर जय श्री जी, मैं चाहूँगा कि जो टीचिंग दे रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट करें जी, ठीक है? जो तुसी करोगे हो सकता लास्ट दिन तुसी कोई प्राइज लेके जाओ, मेरी फीलिंग है, ठीक है? तो कुछ भी पूछा जा सकता, पूरी डिटेल पहले सेशन से तुसी की एक्स्ट्रा नोट किया, दूसरे सेक्शन से पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ਜਿਹੜੇ नहीं लिख सकते वो बोल के दस सकते हैं। तो जे कोई प्राइज लेके जाना चाहते, हालेलुया, ठीक है? बच्चे भी मतलब कि जो लिख नहीं सकते, याद रखना भी एक गल इस तरह से हो सकता है बच्चे भी प्राइज लेके जा सकते हैं, हालेलुया। और जो होमवर्क रह गया है आप सारी सेवा वगैरह करनी, पर रात में आप करांगे जो रह गया पेंटिंग, ठीक है? इस तरह नहीं कि भी कोई सेवा के काम छड़ के तो आप रजिस्टर लेके बैठे हैं, इस तरह नहीं करना, सारे ने रल के मिल के काम करने जो रह गया पूरे, हालेलुया। और थोड़ी देर से खाना बनेगा, तो ऊपर टेबल लग गया है, सारे जने एक साथ बैठ के खाना खावांगे, ठीक है? बैठ के ही खाना खाना, ये नहीं कि मैंने थले दे दो मैंने उस जगह, इस तरह नहीं करना। ऊपर सेटिंग आप बनाया है, ऊपर ही बैठ के सारे खाना खाने के अच्छे तरीके से।